So if you're preparing for CIB exam, then do watch this video till end, because in this particular video we are going to cover the very important topics, and further this video is going to be very important for you for the upcoming exam of CAIB. So whether you are going to prepare in Hindi mixed English language or you are preparing in English language, both the courses are available with the learning sessions over there, which you can basically be enrolling, signing up at our website, that is mentioned on the screen over there and also present in the description box below. Or you can simply scan the QR code over here and further can navigate to the website over there, or you can alternatively download our Android application, which is available in the name of IIBF Learning Center. And if you are iOS user, do download My Institute application and use the organization code GEGKT and start preparing for the same. We are having the full course for CAIB, in which we will be covering all the 5 papers of the CAIB, including the 5 elective subjects over there. And further, those are available in Hindi mixed English language. The electives are available only in bilingual language and not available in English language. But in English language, we are having the full-fledged 4 compulsory subjects, and we are covering the full course videos which are covered in chapter-wise manner. We are having the full course case study videos, and we are having the chapter-wise professor questions, mock test, mega mock test, each and everything is there. And also we are going to provide you with the complimentary access to the ePDF notes, so as that you can escalate your revision throughout the time when you will be preparing for the CIB over there. So do enroll right now and start preparing for the same, and don't forget to watch this video till end. And further, if you like this video, do like this video and share this video among your friends and colleagues who have been preparing for CAIB. And it's related to the Limited Liability Partnership Act 2008 over there. तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर एक हाइब्रिड है। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म एंड जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, इनके फीचर्स इकट्ठे कंबाइंड होते हैं। एलएलपी जो होती है वो कॉर्पोरेट, यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट है, एंड एक लीगल एंटिटी होती है जो कि अपने पार्टनर से सेपरेट होती है। देखिए, अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसके केस में लेट्स से देखिए ए बी सी पार्टनर है, तो उसके केस में तीनों पार्टनर जो होते हैं उनकी यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ओवर देयर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इनके जो एसेट इनके हैं फर्म में वो तो लायबल होंगे, साथ के साथ इनकी पर्सनल लायबिलिटी भी रहेगी, इनके पर्सनल एसेट्स भी लायबल रहेंगे। लेकिन एलएलपी के केस में ऐसा नहीं होता है। एलएलपी के केस में पार्टनर्स जो है वो सेपरेट होते हैं कंपनी से, यानी कि जो यहाँ पर फर्म है उससे सेपरेट होते हैं, एंड फर्दर उनकी जो लायबिलिटी होती है, जो लायबिलिटी लिमिटेड होती है उतनी ही लायबिलिटी होती है। दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एलएलपी ओवर देयर। एंड साथ के साथ एलएलपी को यहाँ पर अपने नाम के साथ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर वर्ड्स लिखने पड़ते हैं। 2 या उससे ज्यादा जो पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर इकट्ठे मिलकर के एलएलपी को फॉर्म कर सकते हैं, एंड अपर लिमिट यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टनर्स को लेकर के कोई भी नहीं है। अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं एलएलपी की, तो यहाँ पर सेक्शन 2 में डेफिनेशंस को कवर किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पर एपिलेट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन को कवर करते हैं, जिसका मतलब है एनसीएलटी, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ओवर देयर, जिसको कंस्टिट्यूट किया गया अंडर द सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ओवर देयर। अगर बॉडी कॉर्पोरेट की बात करते हैं तो बॉडी कॉर्पोरेट पर्टिकुलरली इसे सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया कंपनीज एक्ट के, एंड ये कोई भी एलएलपी हो सकती है जो कि पर्टिकुलरली एलएलपी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, या फिर एलएलपी जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, या फिर कंपनी हो सकती है जो कि इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसमें कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ है, या कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी नोटिफिकेशन गजट के अंडर है, उनको यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाता। अदरवाइज सारी की सारी चीजें यहाँ पर शामिल रहेंगी, राइट। एंड अगर हम कोर्ट की बात करते हैं, कोर्ट का मतलब है कि वो पर्टिकुलर कोर्ट जो यहाँ पर जिसके जुरिसडिक्शन में यहाँ पर एलएलपी को बनाया गया, दैट्स एक्चुअली द कोर्ट ओवर देयर। एंड अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें तो उसे सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया। डेजिग्नेटेड पार्टनर बेसिकली होता है जब यहाँ पर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उस टाइम पर 2 तरह के पार्टनर्स होते हैं, एक तो होते हैं जनरल पार्टनर्स एंड एक होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पर कंप्लायंस का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर एलएलपी है क्या वो सभी चीजों के साथ कंप्लाई कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, एंड अगर वो कंप्लाई नहीं कर पाती है तो कंप्लायंस से रिलेटेड अगर कोई भी पेनल्टी लगाई जाती है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं वो यहाँ पर इंडिविजुअली एंड पर्सनली लायबल रहते हैं। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू फॉरेन एलएलपी। फॉरेन एलएलपी होती है जिसको यहाँ पर एलएलपी को फॉर्म किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया, रजिस्टर किया गया इंडिया के बाहर, एंड फर्दर जिसने इंडिया के अंदर अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया, वो एक फॉरेन एलएलपी कहलाती है। एलएलपी एग्रीमेंट बेसिकली कोई भी रिटन एग्रीमेंट हो सकता है पार्टनर्स के बीच में या फिर पार्टनर्स एंड एलएलपी के बीच में, जिसमें उनके राइट्स ड्यूटीज सभी चीजें यहाँ पर डिटरमाइन की जाएंगी कि उनके क्या क्या म्यूचुअल राइट्स रहने वाले, ड्यूटीज रहने वाली हैं, क्या क्या इनके ऑब्लिगेशंस हैं, वो सभी चीजें यहाँ पर डिफाइन की जाएंगी। दैट इज एलएलपी एग्रीमेंट ओवर देयर। बॉडी कॉर्पोरेट की अगर बात दोबारा से करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एलएलपी जो फर्म होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी कि जो उसकी एग्जिस्टेंस है वो उसके मेंबर्स से सेपरेट है। यानी कि अगर यहाँ पर जैसे हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के केस में भी जो मेंबर्स होते हैं दोस आर सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी ओवर देयर, एंड उसके ऊपर उनका कोई भी यहाँ पर कामकाज के ऊपर पर्पस के ऊपर यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता है। तो एलएलपी का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि कंपनी जो होती है, फर्म जो होती है वो चलती रहेगी, चाहे उसके जो यहाँ पर पार्टनर्स है उनकी डेथ हो जाती है, डिजीज हो जाते हैं, वो इंसॉल्वेंट माइंड के हो जाता है, तो भी वो जो एलएलपी है वो चलती रहेगी। एंड फर्दर
अगर यहां पर पार्टनर्स में चेंज भी होता है तो एलएलपी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, एलएलपी के राइट्स एंड लायबिलिटीज के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। फर्दर बात करते हैं रिलेटेड टू पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर ओवर देयर। तो मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स या डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की जो डेफिनेशन है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर की डेफिनेशन है, दैट्स कवर्ड इन सेक्शन 7 ओवर देयर। एंड अदरवाइज जो प्रॉपर प्रोविजन है यहाँ पर सेक्शन 5 से लेकर के 7 तक, वो यहाँ पर पार्टनर्स को कवर करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 5 को यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पर एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, यानी कि एक्सेप्ट द केस कि अगर पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड का है, या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या पर्सन ने खुद ही अपने आप को अप्लाई किया कि उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाए, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो पेंडिंग है, अभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसके केस में यहां पर वो पार्टनर बन सकता है। उसके केस में पार्टनर नहीं बन सकता अगर उसने यहां पर इंसॉल्वेंसी की एप्लीकेशन लगाई रखी है, अनसाउंड माइंड का, या फिर उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है। इन तीनों केसेस में नहीं बन सकता, अदरवाइज वो पार्टनर बन सकता है, कोई भी पर्सन या फिर बॉडी कॉर्पोरेट भी यहां पर पार्टनर बन सकता है। अगर सेक्शन 6 की बात करें तो यहां पर कहता है कि कम से कम 2 पार्टनर होंगे, यानी कि जब यहां पर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टनर जो है कम से कम 2 यहां पर रहेंगे। लेकिन अगर किसी भी टाइम पर किसी भी वजह से अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो 2 से कम हो जाते हैं, तो एलएलपी जो है वो अगले 6 महीने तक अपना कामकाज चलाती रहेगी। लेकिन जो अकेला पर्सन यहां पर अपना कामकाज चलाएगा एलएलपी को, क्योंकि नंबर जो है वो 2 से रिड्यूस हो चुका है, तो उसको इस चीज का पता होना चाहिए कि बिजनेस को अकेला वो चला रहा है, एंड इस 6 महीने के दौरान जो भी कामकाज किए गए हैं उसकी जो लाइबिलिटी है वो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बनने वाली है। दैट्स द थिंग रिलेटेड टू सेक्शन 6 ओवर देयर। और अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर की बात करें उसको सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया, यानी कि ऐसा कोई भी पार्टनर जिसको एलएलपी की यहां पर इनकॉर्पोरेशन के दौरान जो डॉक्यूमेंट यहां पर साइन किए गए थे रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन ओवर देयर, उसके ऊपर उसने साइन किए थे एंड वो डेजिग्नेटेड यहां पर पार्टनर बना था। तो एलएलपी के केस में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल होने चाहिए, एंड कम से कम इसमें से एक जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए वो यहां पर रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। एंड फर्दर कोई भी इंडिविजुअल जो पर्टिकुलरली यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बनना चाहता है वो पर्टिकुलरली नहीं बनेगा। उसको अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना तो उसको पहले कंसेंट देना पड़ेगा। एलएलपी जब भी यहां पर अपनी फाइलिंग करता है रजिस्ट्रेशन की रजिस्ट्रार के पास, तो उसको यहां पर सभी ऐसे इंडिविजुअल जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं उनके पर्टिकुलर देने पड़ते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर में। एंड फर्दर जब अपॉइंट किए जाते हैं उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहां पर रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें रिलेटेड टू, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो डेजिग्नेटेड पार्टनर है उनके ऊपर लाइबिलिटी रहती है कि उन्होंने यहां पर कंप्लायंस करनी है रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ द एलएलपी एक्ट 2008 ओवर दिया। एंड अगर कंप्लायंस वो नहीं करता, एंड अगर किसी तरह की पेनल्टी लगती है, फाइन लगता है, उसके लिए वो पर्सनली जिम्मेदार रहेंगे। लाइबिलिटीज टू they will be basically liable to all the penalties imposed on the person over there, on the LLP over there, अगर कंप्लायंस नहीं करते हैं, राइट। फर्दर सेक्शन 9 जो है वो यहां पर ये कहता है कि एलएलपी जो है वो यहां पर इन केस अगर मान लीजिए डेजिग्नेटेड पार्टनर कोई यहां पर छोड़ देता है या फिर वैकेंसी आ जाती है वहां पर, तो डेजिग्नेटेड पार्ट एलएलपी जो है वो यहां पर डेजिग्नेटेड पार्टनर को अपॉइंट कर सकती है विद इन द 30 डेज ऑफ वैकेंसी अराइजिंग ऑफ एनी रीजन ओवर देयर। दैट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी ओवर देयर। तो यहां पर सबसे पहले बात आती है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, जिसको सेक्शन 11 में कवर किया गया है, यानी कि वो सभी डॉक्यूमेंट जो कि यहां पर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जरूरी है उनको हम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेक्शन 11 कहता है कि 2 या उससे ज्यादा पर्सन मिलकर के किसी लॉफुल बिजनेस को चलाने के लिए विद अ व्यू कि वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो यहां पर अपने नेम जो है इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट पर लगवा लेते हैं क्योंकि वो पार्टनर्स बनना चाहते हैं। एंड फर्दर ये डॉक्यूमेंट जो होगा इस मैनर में यहां पर जमा किया जाएगा, इस मैनर में इसको फॉर्म को भरा जाएगा एंड फीस साथ में भरी जाएगी जो कोई भी नेसेसरी है। रजिस्ट्रार जो है या फिर एडिशनल रजिस्ट्रार के पास या डिप्टी और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पास इसे जमा करवाया जा सकता है। एंड फर्दर साथ के साथ इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपको स्टेटमेंट जमा करवानी पड़ेगी, जिसको आपका जो कंपनी सेक्रेटरी है या एडवोकेट है या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट है वो आपके पास यहां पर जमा करवाएंगे, या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके पास जमा करवाएंगे, वो आप साथ में इसमें इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ आप जमा करवाएंगे। एंड इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो एक फॉर्म की फॉर्म में होगा जो कि पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड है। एंड फर्दर उसमें यहां पर जो एलएलपी का जिस पर्टिकुलर नेम है, नेम से आप एलएलपी खोलना चाहते हैं उसका नेम होगा। एंड फर्दर जो प्रपोज्ड बिजनेस आप एलएलपी का चलाना चाहते हैं वो होगा। एंड साथ ही साथ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस यहां पर दिया जाएगा। साथ के साथ जो भी पार्टनर्स है हर एक पार्टनर का नेम एंड एड्रेस होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस होगा। एंड फर्दर सेक्शन 12 के अंदर आपको 14 डेज का पीरियड दिया जाता है कि आपको रजिस्ट्रार के पास यहां पर जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसको रजिस्टर करना होता है। जो रजिस्ट्रार है वो यहां पर सर्टिफिकेशन देंगे रिलेटेड टू सर्टिफिकेशन ऑफ एलएलपी ओवर देयर, जो कि पर्टिकुलरली एक स्पेसिफाइड नाम
से दिया जाएगा। एंड फर्दर ये जो चीज होगी दैट वुड बी रिलेटेड टू रजिस्ट्रार जो है वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा साइन किया जाएगा कि हाँ इस नेम से अब एलएलपी जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करती है। जो यहां पर सर्टिफिकेट होगा वो एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा रिलेटेड टू कि अब एलएलपी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर ली गई है इस स्पेसिफिक नेम के साथ। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर्टिकुलरली वो ऑफिस रहता है जहां पर सारी की सारी चिट्ठियां पत्र जो है भेजी जाती हैं एंड वो सभी चीजें यहां पर भेजी जाती हैं। दैट इज अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ इंडिया। एंड इस क्लोज के साथ अगर आप कंप्लाई नहीं करते हैं तो उसके केस में यहां पर पार्टनर्स के ऊपर एंड एलएलपी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है फॉर ईच एंड एवरी पार्टनर एंड फॉर द एलएलपी। 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी हर दिन के हिसाब से ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज ओवर देयर। एंड मैक्सिमम जो पेनल्टी लग सकती है सेक्शन 13 की कंट्रावेंशन के तहत, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस की कंट्रावेंशन के तहत, वो यहां पर 50,000 की यहां पर जो पेनल्टी है वो लग सकती है एलएलपी के ऊपर अलग से एंड हर एक पार्टनर के ऊपर अलग से। यानी कि मान लीजिए अगर 4 पार्टनर है एंड एक एलएलपी होगी तो टोटल यहां पर 50,000 पर हेड पर मेंबर पर पार्टनर हो गया यानी कि 2 लाख रुपए एंड एलएलपी के ऊपर 50,000 रुपए अलग से यानी कि 2.5 लाख रुपए की तक की टोटल पेनल्टी उस केस में लग सकती है। फर्दर अगर हम इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें जो कि सेक्शन 14 में कवर्ड है तो यहां पर अगर एलएलपी रजिस्टर्ड होगी अपने नाम में तो अपने नाम से किसी के ऊपर केस कर सकते हैं, उसके ऊपर केस हो भी सकता है। वो यहां पर जो भी एसेट्स है उनको एक्वायर कर सकती है, उनको ओन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। एंड अगर एलएलपी चाहे तो उसकी कॉमन सील भी होगी यानी कि उसके एलएलपी के सिग्नेचर्स भी हो सकते हैं। अगर हम पार्टनर्स एंड उनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं जो पर्टिकुलरली यहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कवर्ड है, सबसे पहले सेक्शन 22 के बारे में पढ़ते हैं। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू एलएलपी एलिजिबिलिटी ओवर देयर। तो जैसे ही यहां पर एलएलपी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, जो भी पर्सन यहां पर सब्सक्राइब करते हैं उनके नेम्स को डॉक्यूमेंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर, वो सभी यहां पर एलएलपी के पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड फर्दर वो सभी पर्सन यहां पर और भी कोई भी पर्सन भी यहां पर एलएलपी का पार्टनर बन सकता है अगर वो यहां पर सब्सक्राइब करते हैं उनके नेम को इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ओवर देयर। एंड अगर हम यहां पर रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स की बात करते हैं उसको सेक्शन 23 में कवर किया गया, यानी कि इसके बीच में जो होता है यहां पर एलएलपी का जो अग्रीमेंट होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। एलएलपी अग्रीमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यानी कि पार्टनर्स का पार्टनर्स के साथ यहां पर क्या अग्रीमेंट है वो हो सकता है, या फिर पार्टनर्स का एलएलपी के साथ क्या अग्रीमेंट है यानी कि उनके क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उनके बारे में जो यहां पर अग्रीमेंट रहता है दैट्स अ रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स ओवर देयर। फर्दर इट्स रिलेटेड टू सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 24। यानी कि अगर कोई पर्सन यहां पर चाहता है कि वो पार्टनर नहीं बना रहना चाहता एलएलपी का, उसके केस में यहां पर वो रेजिग्नेशन दे सकता है। एंड फर्दर इस केस में अगर कोई अग्रीमेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर अग्रीमेंट नहीं है उसके केस में यहां पर पार्टनर को कम से कम 30 दिन का नोटिस जो है वो और पार्टनर्स को देना पड़ेगा। अब वो अपनी इंटेंशन शो करेगा कि वो यहां पर अपना रेजिग्नेशन दे सकता है एंड पर्सन यहां पर उसके बाद एलएलपी का पार्टनर नहीं बना रहेगा। एंड आल्सो इन केस अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर पर्टिकुलरली डिसोल्यूट हो जाती है एलएलपी ही, या फिर पर्टिकुलरली पार्टनर को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया जाता है कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, या फिर पर्टिकुलरली पर्सन ने अप्लाई किया था किसी पर्टिकुलरली कोर्ट में इंसॉल्वेंट के लिए कि वो इंसॉल्वेंट दिवालिया हो गया है एंड उसे इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है, उस केस में भी वो पार्टनर नहीं बना रहेगा। लेकिन एक चीज आपको बताता हूं, लेट्स से केस की पर्सन ए जो था वो यहां पर 2015 तक यहां पर एलएलपी में पार्टनर था, 1 जनवरी 2015 तक एलएलपी में पार्टनर था। एंड फर्दर उसके बाद ये नहीं कह सकता जो उस पर्सन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कि हाँ ठीक है मैं यहां पर अब एलएलपी का पार्टनर नहीं हूं, 2 जनवरी से वो पार्टनर यहां पर एलएलपी का नहीं रहा, लेकिन जिस दौरान वो पार्टनर था उस दौरान की यहां पर उसकी जो ऑब्लिगेशंस थी, जो उसकी लायबिलिटीज थी, वो यहां पर उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकता। ये चीज यहां पर ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। सेसेशन जो होता है पार्टनर का वो यहां पर ये नहीं होता कि वो अपने आप को पर्टिकुलरली ऑब्लिगेशन से छुड़ा लेता है, या फिर जो उसकी ऑब्लिगेशन थी किसके खिलाफ, उसकी ऑब्लिगेशन थी टुवर्ड्स द पार्टनर अदर पार्टनर्स ओवर देयर, या फिर उसकी ऑब्लिगेशन जो थी यहां पर एलएलपी के लिए, उस ऑब्लिगेशन से वो पीछे फिर भी नहीं हट सकता जब वो पार्टनर था, राइट। एंड फर्दर जब यहां पर पार्टनर जो वो एलएलपी का पार्टनर नहीं रहता है, अनलेस यहां पर अग्रीमेंट ऐसा प्रोवाइड नहीं करता, तो जो फॉर्मर पार्टनर होता है या फिर जो पर्सन एंटाइटल्ड है रिलेटेड टू द कंसिग्नेंस, या फिर डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंसी होती है उस केस में पर्टिकुलरली, यानी कि ए का लीगल हेयर जो है दैट्स एक्चुअली द पर्सन बी ओवर देयर, ठीक है। अगर तो कह रहे हैं कि अगर पर्सन ए की यहां पर डेथ हो जाती है, पर्सन इंसॉल्वेंट है, उसके केस में जो उसके यहां पर लीगल हेयर्स है या फिर जो उसके एस्टेट को संभालने वाले पर्सन है वो हो गए, या फिर अगर पर्सन ए अभी जिंदा है या फिर पर्सन ए अगर अभी जिंदा है, उस केस में यहां पर अगर ये पर्सन सीज कर भी लेता है, यानी कि अगर ये पर्सन अब पार्टनर नहीं भी रहा, उस केस में भी एलएलपी के केस में यहां पर जो इसका प्रॉफिटेबल बनता था, जो उसकी प्रॉफिट में पार्टिसिपेट उसका बनता था, वो यहां पर कंट्रीब्यूशन में या फिर उसकी कैपिटल में जो कंट्रीब्यूशन थी उसके लिए वो उसका हकदार रहेगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के लिए वो उसका हकदार रहेगा, राइट। दैट इज द थिंग रिलेटेड दैट इज सेड ओवर हियर।
फर्दर इट्स रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट फर्म या फिर जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, आप उसको अगर एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली दैट इज अलाउड ओवर देयर। एंड ये चैप्टर 10 के जो सेक्शंस हैं 58 टू 58, 55 टू 58 वो इसको कवर करते हैं। एंड कन्वर्जन अगर आपने करना है फर्म का एलएलपी में, यानी कि पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कवर करना है, सेकंड शेड्यूल में कवर किया गया है, सेक्शन 55 में कवर्ड है। अगर यहां पर प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कवर करना है, सेक्शन 56 थर्ड शेड्यूल में कवर है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कवर करना है, आपने कन्वर्ट करना है एलएलपी में, तो सेक्शन 57 एंड फोर्थ शेड्यूल में उसे कवर किया गया है। एंड जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी पर्टिकुलर स्पेसिफिक शेड्यूल के अंदर, दैट विल बी द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जिस डेट को इशू किया गया था, सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल या फोर्थ शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल होता है रिलेटेड टू फर्म, फर्म से एलएलपी, एंड प्राइवेट से अगर करना है तो यहां पर थर्ड शेड्यूल, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से करना है तो फोर्थ शेड्यूल, एंड अगर फर्म से है तो 55, अगर प्राइवेट से है 56, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी से तो 57। तो ये यहां पर आपके पास डिफरेंट शेड्यूल्स रहते हैं। तो उसके केस में जो भी टेंजिबल, इमूवेबल या मूवेबल, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, चाहे इंटरेस्ट थे, राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, लायबिलिटीज थी, ऑब्लिगेशंस थी, वो सारी की सारी एलएलपी के नाम में आ जाएंगी। एंड फर्दर उसके लिए फर्दर एश्योरेंस एक्ट या डीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड फर्दर फर्म जो है वो यहां पर डिसॉल्व हो जाएगी। लेट्स से कि यहां पर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड थी, इसने यहां पर कौन से शेड्यूल के अंदर कवर होगी, ये होगी थर्ड शेड्यूल के अंदर कवर होगी। एंड फर्दर कौन से सेक्शन के अंदर, 56 के अंदर यहां पर कवर होगी। एंड फर्दर इसको यहां पर एलएलपी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो यहां पर ये जो प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी ये डिसॉल्व हो जाएगी इस डेट के ऊपर, एंड एलएलपी जो है वो यहां पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगी। एंड इनको यहां पर जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी है सेक्शन 34 के अंदर, वो यहां पर बनानी पड़ेगी प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर अंदर। एंड जो भी रूल्स यहां पर दिए गए हैं, जो भी पेनल्टीज यहां पर लिवाई की जाएगी नॉन कंप्लायंस के लिए, वो इनको यहां पर पे करनी पड़ेगी। सेक्शन 35 जिसको अमेंड किया गया, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू कि इनको यहां पर एक यहां पर ड्यूली ऑथेंटिकेटेड जो यहां पर एनुअल रिटर्न है वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करनी पड़ती है 60 दिन के अंदर अंदर। यानी कि जो भी एलएलपी बनती है उसको यहां पर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर जो रजिस्ट्रार है उनके पास यहां पर जो एनुअल रिटर्न है उसे यहां पर फाइल करना पड़ेगा, उसे यहां पर फाइल करना पड़ेगा। जिस मैनर में जमा करवानी उस मैनर में, जिस अगर कोई फीस जमा करवानी है तो उस फीस के साथ यहां पर रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी पड़ेगी। एंड फर्दर अगर एलएलपी जो है वो यहां पर अपनी एनुअल जो रिटर्न होती है उसको फाइल नहीं करवाती है, उसके केस में जो भी एलएलपी है या फिर उसके जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है, क्योंकि कंप्लायंस नहीं हुआ तो फाइन किसके ऊपर लगेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर लगेगा, तो उनके ऊपर ₹100 पर डे के हिसाब से जिस दिन से फेलियर स्टार्ट हुआ है जब तक फेलियर चलेगा ₹100 पर डेजिग्नेटेड पार्टनर पर एलएलपी ओवर दिया, ये फाइन यहां पर लगेगा। एलएलपी के ऊपर मैक्सिमम फाइन जो है वो ₹1,00,000 तक का लग सकता है, एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ऊपर जो मैक्सिमम फाइन है वो 50,000 तक का लग सकता है, राइट। to NBFCs, that is a non-banking financial companies over there। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिस नेम से हम उनको जानते हैं, बेसिकली वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं एंड फर्दर फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑफर्स को, प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ऑफर करती हैं। एंड वो यहाँ पर ऑफिशियली बैंक की तरह काम नहीं करती हैं, लेकिन उनको यहाँ पर लाइसेंसिंग जो है वो यहाँ पर करवानी पड़ती है। ये NBFCs जो होती हैं वो यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होती हैं। एंड फर्दर ये यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है दैट्स रिलेटेड टू कि ट्रेडिशनल जो डिमांड डिपॉजिट जो बैंक एक्सेप्ट कर सकते हैं वो ये एनबीएफसीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एनबीएफसीज जो होती है वो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस दे सकती हैं, शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं, स्टॉक्स को एक्वायर कर सकते हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर, सिक्योरिटीज एटसेट्रा जो भी इशू होती है गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल अथॉरिटी द्वारा, उनको यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर लीज, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, किसी भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को लेंडिंग नहीं करेंगे जो पर्टिकुलरली यहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, जो पर्टिकुलरली प्रिंसिपल बिजनेस जो है इनका प्रिंसिपल बिजनेस, खुद का प्रिंसिपल बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू लेंडिंग, लेकिन इनका खुद का प्रिंसिपल बिजनेस जो है वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर डायरेक्टली सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में यहाँ पर डील नहीं कर सकते अदर देन द सिक्योरिटीज ओवर देयर। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये ऐसी सर्विसेज कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे जिसमें हम यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल परचेज की बात कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, उसमें डायरेक्टली डील नहीं करेंगे, राइट। Now let's have a look at the regulation related to NBFC over there। तो डिपार्टमेंट ऑफ नॉन बैंकिंग सुपरविजन जो DNBS पर्टिकुलरली है, जो पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, वो उसको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिलेटेड टू की सुपरविजन भी करनी है एंड अपने रेगुलेशन भी करनी है, ओके। एंड फर्दर अगर हम फोकस की बात करें तो हमारा मेन फोकस अगर इसकी रेगुलेशन को लेकर के, सुपरविजन को लेकर के, तो हमें यह है कि जो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी इकोनॉमी में बनी रहे, ये सबसे बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर एम्पावर किया गया है
आरबीआई के 1934 में जो एक्ट आया था उसके अंडर, कि वो यहाँ पर पुनिटिव एक्शन भी ले सकता है एनबीएफसी के खिलाफ। इसमें जो आरबीआई है वो एनबीएफसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं, साथ के साथ प्रोहिबिशन के ऑर्डर भी दे सकते हैं रिलेटेड कि आप डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या क्रिमिनल केसेस भी फाइल अप की जा सकते हैं, या वाइंड अप की पिटीशन भी यहाँ पर फाइल की जा सकती है एज पर द कंपनीज एक्ट इन एक्सट्रीम केसेस ओवर देयर। तो ये पावर्स यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई हैं। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं एज ऑफ एसबीआर, दैट इज अ स्केल बेस्ड रेगुलेशन, तो यहां पर रेगुलेटरी जो स्ट्रक्चर है एनबीएफसी को 4 लेयर्स में बांट देता है, बेस लेयर, मिडिल लेयर एंड अपर लेयर एंड टॉप लेयर ओवर देयर। ठीक है, तो यहां पर 4 तरह की यहां पर ये कैटेगरीज हैं। जो टॉप लेयर है आइडियली वो यहां पर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एम्प्टी रहने वाली है, उसमें कोई भी यहां पर एनबीएफसी नहीं रहेगी। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई ऐसी एनबीएफसी है जो काफी ज्यादा खतरनाक होगी है, काफी ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, एंड अगर वो फेल हुई तो सिस्टमिक रिस्क इंपोज हो सकता है, उसके केस में उसे टॉप लेयर में रखा जाएगा। अदरवाइज यहां पर 4 लेयर्स है, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर ओवर देयर। सबसे पहले बेस लेयर की बात करते हैं, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जिनका जो टोटल एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से कम है, ठीक है, यानी कि 1000 करोड़ तक का है एंड 1000 करोड़ से नीचे तक का है, वो सभी यहां पर एनबीएफसीज किसका पार्ट बनती है, बेस लेयर का पार्ट बनती है। इसके अलावा वो एनबीएफसीज जो पीयर टू पीयर लेंडिंग करती हैं या फिर अकाउंट एग्रीगेटर, यानी कि अकाउंट्स की डिटेल्स बाकी लेंडर से खींचती हैं, एंड दैट्स इट। एंड फर्दर यहाँ फिर नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनीज हैं, या फिर वो पब्लिक फंड्स में डील नहीं कर रही हैं, कोई भी डायरेक्ट उनका कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उसके केस में उनको बेस लेयर में रखा जाएगा। अगर मिडल लेयर की बात करें तो सभी की सभी एनबीएफसी जो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रही है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज। मैंने आपको बताया कि ऊपर हमने कहा कि बेस लेयर के केस में वो आएंगी जिनका एसेट साइज जो है वो 1000 करोड़ तक है, लेकिन मिडल लेयर के केस में वो सभी डिपॉजिट जो एक्सेप्टिंग एनबीएफसी हैं वो सभी यहां पर मिडल लेयर का पार्ट बनेंगे, एंड साथ ही साथ वो सभी एनबीएफसी जिनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है, वो यहां पर किसका पार्ट बनेंगी, मिडल लेयर का पार्ट बनेंगी। एंड साथ के साथ वो सभी एनबीएफसीज जो एसपीडी यानी कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड से रिलेट कर रही हैं, या फिर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज आईएफसीज हैं, वो सभी मिडल लेयर में पार्ट बनती हैं। एंड अगर हम अपर लेयर की बात करते हैं तो एनबीएफसीज जो कि पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई की गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जो जिनके लिए काफी ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उनको यहां पर अपर लेयर में शामिल किया जाएगा। एंड जो यहां पर टॉप 10 एलिजिबल एनबीएफसीज होगी एसेट साइज के बेस पर, उनको अपर लेयर में शामिल किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि सबसे ज्यादा जो एसेट साइज है वो टॉप 10 जो यहां पर एसेट साइज होल्डिंग एनबीएफसीज होंगी उनको अपर लेयर में शामिल किया जाएगा। एंड फर्दर अपर लेयर पर्टिकुलरली इस तरह से यहां पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, अपर लेयर में एनबीएफसीज को उनका पैरामीटर्स को गो थ्रू किया जाएगा, मेथोडोलॉजी एंड फर्दर क्या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव पैरामीटर्स है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अगर स्कोरिंग मेथोडोलॉजी की बात करते हैं तो टॉप 50 जो एनबीएफसीज है एक्सक्लूडिंग द टॉप 10 एनबीएफसीज जो एसेट साइज के हिसाब से उन्होंने रखी थी, वो ऑटोमेटिकली अपर लेयर में आती है अगर उनके पैरामीटर वाइज वो यहां पर किसमें स्टैंड करती हैं, अगर वो यहां पर पैरामीटर वाइज है। एंड फर्दर यानी कि टॉप 10 जो एसेट साइज थी उनको छोड़ करके अगर पैरामीटर वाइज भी हम रैंकिंग करते हैं तो उसके बेस पर जो टॉप 50 होंगी वो भी अपर लेयर में आएंगी। एंड इसमें जो आपका यहां पर लेंडिंग है, टोटल एक्सपोजर है, वो भी शामिल होगा, जिसमें सीईओ बीईओ यानी कि क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का टोटल का क्राइटेरिया यहां पर रखा जाएगा। एंड एनबीएफसी जो है जिनको लास्ट ईयर यहां पर रखा गया था एनबीएफसी यूएल में, उनको भी कंटिन्यू किया जाएगा एनबीएफसी यूएल में। एंड फर्दर हो सकता है कि किसी सुपरवाइजर ने जजमेंट दी हो किसको एनबीएफसी को अपर लेयर में रखना है, तो उसे तो यहां पर अपर लेयर में आपको रखना ही पड़ेगा। टॉप लेयर आइडियली एम्प्टी रहती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ और सिर्फ वो एनबीएफसी जो पोटेंशियल सिस्टमिक रिस्क इंपोज कर सकती हैं उनको टॉप लेयर में रखा जाएगा। एंड फर्दर अगर हम रेगुलेटरी चेंजेस की बात करते हैं रिलेटेड टू द एसबीआर, तो यहां पर कहा गया कि नेट ओन्ड फंड्स की जो गाइडलाइंस थी पीयर टू पीयर लेंडिंग में अकाउंट एग्रीगेटर के केस में, या फिर एनबीएफसी जो को जिनकी कोई भी पब्लिक फंड्स में या पब्लिक इंटरफेस नहीं है, उनके लिए यहां पर 2 करोड़ की है, अदरवाइज बाकी सबके लिए यहां पर 10 करोड़ रुपीज कर दी गई है। अगर नेट ऑन फंड्स की मिनिमम नेट ऑन फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है इन सभी केसेस के लिए 2 करोड़ की है, अदरवाइज वो कितनी है, 10 करोड़ की कर दी गई है। अगर एनपीए क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर ग्लाइड पाथ दिया गया है, यानी कि देखिए बैंक्स में तो ये रहता है कि 90 डे से अगर अगर आपका ओवरड्यू हो गया है तो उसके केस में एनपी होगा, लेकिन एनबीएफसी के केस में ऐसा नहीं है, तो ग्लाइड पाथ दे दिया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक 150 डे से ज्यादा कोई भी ओवरड्यू वो एनपी में आएगा, 31 2025 तक अगर 120 डे से ज्यादा है तो एनपी में आएगा, एंड 31 ऑफ मार्च 2026 तक 90 डे से ज्यादा तो एनपी में आएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया कि ग्लाइड पाथ जो है वो उन एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा जिनके लिए ऑलरेडी मैंडेटरी है कि उन्होंने 90 डे जो एनपीए रेगुलेशन एंड नॉर्म है उसको फॉलो करना है। ओके, फर्दर एक्सपीरियंस की बात करें तो कम से कम एक ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर आप
कि एनबीएफसी में होना चाहिए जिसने या तो किसी बैंक में या फिर एनबीएफसी में काम किया है। अगर सीलिंग ऑन आईपीओ की बात करें तो यहाँ पर भी सीलिंग रखी गई है कि 1 करोड़ से ज्यादा पर बोरो से ज्यादा जो लेंडिंग है आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं की जाएगी, एंड एनबीएफसी से ज्यादा स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस भी रख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड एसेट की बात करें तो अपर लेयर के केस में यहाँ पर चेंजेस है। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर 2022 में डिसाइड किया था कि जो अपर लेयर है उनको प्रोविजंस यहाँ पर डिफरेंशिएटेड रखनी पड़ेंगी स्टैंडर्ड एसेट्स के हिसाब से, जैसे कि बैंक के केस में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तो इंडिविजुअल लोन दिए गए हैं जिसमें हाउसिंग लोन शामिल है या फिर आपके पास स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, वहां पर पर्टिकुलरली क्या है, आपके पास माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, तो वहां पर 0.25% आपकी यहां पर जो प्रोविजन है वो रहेगी। माइक्रो एंड स्मॉल की बात कर रहे हैं, नॉट स्मॉल मीडियम, माइक्रो एंड स्मॉल। ओके, एंड अगर हाउसिंग लोन एक्सटेंड किया गया टीजर रेट के ऊपर, टीजर रेट के केस में होता क्या पर्टिकुलरली कि शुरू के दौर में ना इंटरेस्ट रेट कम होते हैं एंड बाद में इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में जो आपको प्रोविजन रखनी पड़ेगी 2% रखनी पड़ेगी, जो कि बाद में डिक्रीज होती होती 0.4% हो जाएगी आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रेट, जब यहां पर रीसेट हो जाएंगे हाई रेट के ऊपर। यानी कि मान लीजिए पहले 2 साल के लिए कम रेट थे, उसके बाद 1 साल के बाद यानी कि 3 साल के बाद वो 0.40% पर प्रोविजन सेट हो जाएगी। पहले आपको 2% के हिसाब से यहाँ पर जो प्रोविजन है टीजर रेट हाउसिंग लोन के लिए मेंटेन करनी पड़ेगी। फर्दर अगर हम जो आपके पास कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउसिंग है उसके केस में 0.75% एंड कमर्शियल रियल एस्टेट के केस में 1%। ये तीनों क्राइटेरिया जो बेसिकली सेम है जैसे कि रेगुलर बैंक के लिए होते हैं। एंड रीस्ट्रक्चर्ड एडवांसेस की बात करें तो जो स्टिपुलेशन यहाँ पर दी जाएगी प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अंदर कि आपको कितना प्रोविजन मेंटेन करना है रेगुलर के लिए, उतना आपको मेंटेन करना पड़ेगा। एंड फर्दर अभी बाकी सभी एडवांसेस की बात करें तो वहां पर आपको 0.40% की जो प्रोविजन है स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए वो मेंटेन करनी पड़ेगी। अभी हम रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें तो सबसे पहले कैपिटल गाइडलाइंस की बात करते हैं। इसमें आईसीएएपी सबसे पहले आता है। आईसीएएपी इज एक्चुअली रिलेटेड टू इंटरनल कैपिटल एडिक्वेसी एंड असेसमेंट प्रोसेस ओवर देयर। बेसिकली ये एसआरपी यानी कि जो पिलर 2 है बेसल 3 का उसके अंडर आता है। ये पर्टिकुलर किस चीज से रिलेटेड है कि पिलर 1 में कहा गया कि आपके पास मिनिमम कैपिटल रेशियो होनी चाहिए जिसमें आप क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को देखते हो। लेकिन ये तीनों रिस्क नहीं होते, और भी रिस्क हो सकते हैं ना बैंक्स में। आपको उन सभी रेजिडुअल रिस्क को भी अकाउंटेबल बनाना पड़ता है एंड उसके लिए भी आपको कैपिटल बनानी पड़ती है। एंड उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो हमारे रेगुलेटर हैं उन्होंने कहा कि आपके बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, आपके खुद की इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसा सिस्टम होना चाहिए। एनबीएफसी को भी यही चीज कही है कि आपके पास ऐसा मॉडलिंग होना चाहिए जिसके थ्रू आप खुद असेस कर पाएंगे कि आपकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, आपकी रिस्क पर्टिकुलरली एपिटाइट कितनी है, उसके हिसाब से आपको कितनी कैपिटल अलग से मेंटेन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीज यहां पर कही गई है। फर्दर रिलेटेड टू कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल के केस में अपर लेयर को खास करके कहा गया है कि आपको कम से कम CET1 जो कि टीयर 1 का कंपोनेंट है। टीयर 1 में बेसिकली दो कंपोनेंट होता है, एक होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल एंड दूसरा होता है एडिशनल टीयर 1 कैपिटल। तो यहां पर एनबीएफसी अपर लेयर को कहा गया कि आपको 9% रिस्क वेट एसेट्स का कम से कम CET1 की तरफ मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे कि लेवरेज रेशियो, यहां पर लेवरेज कैपिटल एक मेंटेन करनी पड़ती है बैंक्स को। लेवरेज इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू, जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए बदले में मैं 15 रुपए किसी को उधार दूं। अब आप कहोगे कैसे पॉसिबल है। मान लीजिए मैंने 10 रुपए उधार पे दिए एंड फॉर वही पैसा बाद में बैंकिंग सेक्टर में जमा हो गया एंड अल्टीमेटली मेरे पास पैसे यहाँ पर शोकेस होगी भी, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा कितना है, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 10 रुपीज है जो घूम रहे हैं मार्केट में, तो वो लेवरेज बन जाती है। ठीक है, तो लेवरेज को यहाँ पर कि लेवरेज काफी रिस्की कंपोनेंट बन जाता है, उसके साथ डील करने के लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो लेवरेज है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब की जा सकती है जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड फर्दर रिलेटेड टू डिफरेंशियल स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग ओवर देयर, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एनबीएफसी अपर लेयर के लिए तो कहा गया कि आप इवन स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए आप डिफरेंशियल प्रोविजनिंग करेंगे जैसे कि बैंक्स के केस में होता है, वो हमने ऑलरेडी ऊपर परसेंटेज पढ़ ली है। ठीक है, फर्दर उसके बाद प्रूडेंशियल गाइडलाइंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक्सपोजर लिमिट की बात आती है, कंसंट्रेशन लिमिट की बात आती है। तो पहले क्या होता था कि लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर अलग अलग गाइडलाइन थी। ठीक है, लेकिन अभी सिंगल गाइडलाइन दे दी गई है। पहले ये जो गाइडलाइन होती थी ये ओन्ड फंड के बेस पर परसेंटेज होती थी, लेकिन अब जो ये परसेंटेज है ये यहाँ पर जो टीयर 1 कैपिटल है उसकी परसेंटेज है। यानी कि प्रीसीडिंग ईयर में 31 मार्च को जो आपने आपकी टीयर 1 कैपिटल की परसेंटेज होगी उसकी परसेंटेज आप रख सकते हो। तो इंडिविजुअल बोरोर के ऊपर, सिंगल बोरोर के ऊपर आपका जो मैक्सिमम एक्सपोजर हो सकता है, चाहे वो पर्टिकुलरली किसी भी चीज से रिलेटेड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, वो आपको 25% होगा एंड ग्रुप बोरोर के ऊपर जो एक्सपोजर होगा वो 40% होगा। फर्दर रिलेटेड टू एसएससी दैट इज अ सेंसिटिव सेक्टर एक्सपोजर ओवर देयर। तो इसमें यहां पर कोई भी आपका एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट के ऊपर, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपोजर है चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, एंड कमर्शियल रियल एस्टेट के ऊपर जो एक्सपोजर है उसको एसएससी में शामिल किया गया है। अब यहां पर जो एनबीएफसी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यहां पर अलग से एक यहां पर हमारी अपनी इंटरनल लिमिट्स बना सकते हैं कि किस तरह से वो यहां पर स्ट्रिंजेंट लिमिट्स यहां पर बनाएंगे एंड किस तरह से डील करेंगे एसएससी के साथ। फर्दर रिलेटेड टू रेगुलेटरी
रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स ओवर देयर। जैसे बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप अपने डायरेक्टर्स को एडवांसेस देते हो तो उसमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कितना भी एडवांस दे दो। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिमिट रख दी है, 5 करोड़ की लिमिट रख दी है, 500 लाख की लिमिट रख दी है, उसी तरह से यहाँ पर भी लिमिट्स रखी गई हैं कि आप ऐसे नहीं दे सकते लोन, आपको प्रॉपर स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, आप रिलेटिव्स को या फिर मेजर जो शेयर होल्डिंग्स है जिनकी, उनको लेंडिंग नहीं कर सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर अपने सीनियर ऑफिसेज जो है एनबीएफसी के, उनको भी लेंडिंग करनी है, एडवांसेस देने हैं, तो वहां पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, वहां पर भी रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। एंड साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट के कोई लोन करते हो तो उसके केस में एनबीएफसी को ये इंश्योर करना है कि जो बोरोज हैं उन्होंने जो भी गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट की, लोकल अथॉरिटीज की, स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की, उनको फुलफिल कर लिया, एंड जो भी एनओसीज रिक्वायर्ड थे वो यहाँ पर एनओसीज ले लिए हैं। फर्दर रिलेटेड टू लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क ये कहता है कि अगर हम यहां पर काउंटर पार्टीज एंड फर्दर ग्रुप्स की बात करते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है, तो उनको सिंगल एक्सपोजर, ग्रुप एक्सपोजर की तरह माना जाएगा, एंड उसके हिसाब से उनको लेंडिंग मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास कितनी परसेंटेज थी, डेट वाज 40% ओवर दिया, अभी हमने पढ़ा 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया था। फर्दर रिलेटेड टू इंटरनल एक्सपोजर लिमिट्स, देखो आपकी लिमिट्स तो यहाँ पर बाकी तो लगाई दी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दी, लेकिन आप अपनी इंटरनल लिमिट्स को भी सेट कर सकते हो कि आप कितना लेंडिंग कर सकते हो। तो इंटरनल की बोर्ड एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके रिलेटेड यहाँ पर लिमिट सेट की जा सकती है। फर्दर गवर्नेंस गाइडलाइंस के बारे में देख रहे थे कि ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करने वाले हो एंड स्ट्रक्चर कैसे होगा, कंप्लायंस कैसे करोगे। तो यहां पर बोर्ड लेवल पर आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होनी चाहिए, एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो ओवरऑल जो भी रिस्क हैं, जो भी एनबीएफसी के द्वारा फेस किए जा रहे हैं, उन सभी को इवैल्यूएट करेगी, जिसमें लिक्विडिटी रिस्क भी शामिल रहेगा, एंड वो सारे के सारे जो रिस्क उन्होंने इवैल्यूएट किए हैं उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखेगी। एंड साथ ही साथ डिस्क्लोजर्स रखे गए, जैसे बैंक्स के ऊपर भी होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है, तो वो सभी आपके टाइप ऑफ एक्सपोजर हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई, आपने डायरेक्टर्स को कितने लेंडिंग करी है, कस्टमर की कंप्लेंट है, उन सभी को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एंड वो सभी की सभी चीजें आपको पब्लिक में रखनी पड़ेंगी। इसी तरह से अगर आप लोन देते हैं डायरेक्टर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को, रिलेटिव्स को, डायरेक्टर्स को, तो बेस लेयर के केस में यहाँ पर बोर्ड अप्रूव पॉलिसी होनी चाहिए कि आप किस पॉलिसी के तहत यहाँ पर लेंडिंग करने वाले हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा को, जिनकी मेजर होल्डिंग है। एंड फर्दर अगर रेगुलेटरी चेंजेस की बात करते हैं, अगर यहाँ पर हम बात करते हैं एनबीएफसी मिडिल लेयर एंड अपर लेयर के बारे में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फर्स्ट ऑफ लेट्स रिलेटेड टू की मैनेजरियल पर्सनल ओवर देयर, यानी कि अगर आपके पास यहां पर कोई भी यहां पर पर्सन है, कोई भी यहाँ पर पर्सन जो कि की मैनेजरियल पर्सन है आपके एनबीएफसी में, तो वो किसी और एनबीएफसी में वो किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, वो किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं कर सकता, ना ही डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता, ना ही किसी तरह की पोजीशन होल्ड कर सकता, अगर वो आपकी एनबीएफसी में की मैनेजरियल पर्सन है। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो एक टाइम पर मैक्सिमम वो 3 एनबीएफसी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं, जो कि एनबीएफसी एमएल या फिर एनबीएफसी यूएल हो सकती हैं। देन फर्दर स्टडी टू सीसीयू, अब जैसे बैंक्स में कंप्लायंस फंक्शन होता है, उसी तरह से यहाँ पर एनबीएफसी में भी कंप्लायंस फंक्शन होता है, एंड उस चीज को एंश्योर करने के लिए जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जो पर्टिकुलरली एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रहती है, एंड उनको वास्ट यहाँ पर जो पावर्स है वो यहाँ पर दी जाती हैं, एंड दोज पावर्स आर गिवन अंडर द कंप्लायंस फंक्शन पॉलिसी ओवर दिया। फर्दर स्टेटेड टू कंपनसेशन गाइडलाइंस ओवर दिया। देखिए कंपनसेशन गाइडलाइंस पर्टिकुलरली क्यों जरूरी है, कई बार हो सकता है कि कई बार ना ये चीज कह दे कि आप इतना प्रॉफिट लेकर आओ, आपको इतना पैसा देंगे, ये चीज डायरेक्टर्स में हो सकती है। तो इस तरह की चीजें जो होती है वो ओवरऑल जो एनवायरमेंट होता है एंड ओवरऑल जो इंटरेस्ट होता है पब्लिक डिपॉजिटर्स का, उसको खराब करती है। तो उसके इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आप कंपनसेशन गाइडलाइन प्रॉपर रख दो कि कंपनसेशन किस बेस पर यहाँ पर दी जाएगी, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या फिर जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको किस तरह से कंपनसेशन दी जाएगी। फर्दर गवर्नेंस मैटर्स की बात करते हैं तो बोर्ड को यहाँ पर पर्टिकुलरली डिफरेंट रोल्स यहाँ पर एमिनेट करने पड़ेंगे रिलेटेड टू ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन रिमुनरेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड अदर कमेटीज को यहाँ पर बनाना पड़ेगा, एंड फर्दर उनके कामकाज देखने पड़ेंगे। एंड साथ के साथ एनबीएफसी की विसल ब्लोअर पॉलिसी बनी चाहिए जो पर्टिकुलरली डायरेक्ट करती है कि कोई भी इंप्लॉय अगर कुछ अनएथिकल या रॉन्ग डूइंग चल रही है आपकी एनबीएफसी में तो उसको वो रिपोर्ट कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन मिलती है अंडर द विसल ब्लोअर पॉलिसी ओवर दिया। फर्दर बोर्ड को यहाँ पर इस चीज को इंश्योर करना है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी हो, ताकि कॉर्पोरेट आपके पास कल्चर क्रिएट हो, एक गवर्नेंस कल्चर क्रिएट हो, एक कंप्लायंस कल्चर क्रिएट हो, एंड आप ओवरऑल यहाँ पर तरक्की कर पाओ। एंड फर्दर रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स की बात करें तो आपके पास कम से कम यहाँ पर जो पर्सन है सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिलेटेड टू अकाउंटिंग, रिलेटेड टू लीगल एस्पेक्ट्स, वो सभी चीजों से रिलेटेड यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस पर्सन होने चाहिए। फर्दर रिलेटेड टू रिव्यू ऑफ द असेसमेंट मेथडोलॉजी, जो मेथडोलॉजी है रिलेटेड टू व्हाट कि आप किस तरह से एनबीएफसी यूएल में आपने कौन सी जो एनबीएफसी उनको रखा हुआ उसके रिलेटेड किस तरह से आप क्लासिफाई करो, उसको रिव्यू साल में आप कम से कम आपको एक बार करना है, एंड पीरियडिकली आप उसको रिव्यू कर सकते हो। क्लासिफिकेशन की बात करें रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑन एनबीएफसी, तो एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पर्टिकुलर एनबीएफसीज हैं
वो स्टिल इन प्रोसेस हैं कि वो मिनिमम CRAR को प्रोक्योर कर लें। उन्होंने अभी CRAR को प्रोक्योर नहीं किया है। अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं एनबीएफसी की, तो जो पब्लिक फंड नहीं अचीव कर रही हैं या फिर कस्टमर इंटरफेस नहीं है, उनकी डेफिनेटली रिस्क प्रोफाइल जो होती है वो डिफरेंट होती है, एंड उनके साथ डिफरेंशियल रेगुलेटरी ट्रीटमेंट भी बनता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू framework for compliance function and role of chief compliance officer in NBFC UL and NBFC ML over there। यानी कि कंप्लायंस फंक्शन का फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है एंड सीसीओ का क्या रोल रहेगा एनबीएफसी अपर लेयर में एंड मिडल लेयर में। ओके, तो कंप्लायंस रिस्क पर्टिकुलरली ये रिस्क रहता है जब जो भी गाइडलाइंस है, चाहे इंटरनल गाइडलाइंस चाहे एक्सटर्नल गाइडलाइंस। इंटरनल गाइडलाइंस मतलब खुद के प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज एक्सेट्रा हो गई, एंड एक्सटर्नल गाइडलाइंस होगी जहां पर रेगुलेटरी अथॉरिटी जैसे मान लीजिए आरबीआई ने, सेबी ने, पीएफआरडीए ने या फिर आईआरडीए ने कोई गाइडलाइंस आपको दी है एंड आपको उनको फॉलो करना है, लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो वहां पर डेफिनेटली आपको लॉस हो सकते हैं। आपका बिजनेस लॉस हो सकता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, आपकी रेपुटेशन लॉस हो सकता है, तो काफी ज्यादा लॉस आपको हो सकता है, एंड वो सभी चीज किस वजह से हुआ, क्योंकि आपने कंप्लाई नहीं किया। दैट इज अ कंप्लायंस रिस्क ओवर देयर। एंड आपके पास एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए कि आप डिफरेंट चीजों के साथ कैसे कंप्लाई करेंगे एंड फर्दर अकाउंटेबिलिटी किस तरह से सेट होगी। तो आपको यहाँ पर सभी स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना होता है, आपको उन सभी चीजों को फुलफिल करना होता है, एंड अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता भी है तो किस तरह से इनके साथ डील किया जाएगा वो सब चीजों को देखना पड़ता है। एंड साथ ही साथ आप अपने कस्टमर्स के साथ फेयरली मैनर में किस तरह से डील करवा रहे हैं ताकि सूटेबल कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जा सके, राइट। एंड फर्दर बोर्ड की एंड सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इस केस में, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो मेन जिम्मेदारी उन्हीं की है। ओवरऑल देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी रिस्क को मैनेज करने की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। सीनियर मैनेजमेंट जो होते हैं वो पॉलिसीज को बनाते हैं, अप्रूव करवाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। एंड जो यहाँ पर सीसीओ का भी यहाँ पर देखिए, जो सिलेक्शन कमेटी होती है वो सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाई जाती है, एंड जो अप्रूवल होता है रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ सीसीओ यानी कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को जो यहाँ पर नियुक्त किया जाता है वो यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क पॉलिसी आपकी होगी एंड आप उसको प्रियोडिसिटी के साथ यहाँ पर रिव्यू भी करेंगे। सीनियर मैनेजमेंट को यहाँ पर कम से कम चीजें चाहिए होती है कि जो भी मेजर यहाँ पर कंप्लायंस रिस्क हैं उन सभी को यहाँ पर आइडेंटिफाई करें, एंड उनके साथ डील करने के लिए आपके पास यहाँ पर किस तरह से आपने डील करना है उसके लिए यहाँ पर प्लान भी यहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट को बनाने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ जो भी यहाँ पर इनका रिव्यू आया है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सबमिट करवाना पड़ेगा, एंड फर्दर डिटेल एनुअल रिव्यू देना पड़ेगा कंप्लायंस के ऊपर। एंड जो भी आपको कमी पेशी देखने को मिलती हैं उनको आगे प्रॉम्प्ट कीजिएगा बोर्ड को या फिर बोर्ड कमेटी को, जो भी कंप्लायंस फेलियर्स आपको लग रहे हैं, एंड जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने वाला है या फिर रेमेडियल एक्शन, करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है उसको भी हम टेक ऑन करेंगे। फर्दर स्टडी टू फेयर प्रैक्टिसेस कोड फॉर एप्लीकेबल, कोड एप्लीकेबल फॉर द एनबीएफसीज ओवर देयर। तो यहाँ पर लोन एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो जो भी आपकी कम्युनिकेशन होती है बोरोर के साथ वो कम आपकी वर्नाक्यूलर यानी कि जो लोकल लैंग्वेज वो वहां की समझ पा रहे हैं उस लैंग्वेज में वहां पर होनी चाहिए। एंड फॉर द लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं यानी कि आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए लोन एप्लीकेशन फॉर्म, ताकि एक मीनिंगफुल कंपैरिजन हम यहाँ पर कर पाए, टर्म्स एंड कंडीशंस प्रॉपर्ली यहाँ पर कन्वेड होनी चाहिए बोरोर को, एंड फॉर द वन टाइम प्रोसेस होना चाहिए, कम से कम टाइम वहां पर लगना चाहिए। एंड एनबीएफसी को ऐसा प्रोसेस डिवाइस करना चाहिए कि जब भी उनके पास लोन एप्लीकेशन आती है तो वो उसे यहां पर एक्नॉलेज भी कर पाए। फर्दर इट्स रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन। तो कंप्लायंस फंक्शन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? पहली चीज होती है कि असिस्ट करना है बोर्ड को या फिर बोर्ड कमेटी को, सीनियर मैनेजमेंट को, रिलेटेड टू कि जो भी आपकी यहाँ पर पॉलिसी है वो इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसमें जो आपकी इंटरनल पॉलिसीज, गाइडलाइंस, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, मैनुअल्स हैं वो सभी आपके फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। एंड फर्दर एक सेंट्रल रोल बन जाता है कि कंप्लायंस रिस्क किस तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, किस तरह से आप उसके साथ डील कर रहे हैं। फर्दर कंप्लायंस फंक्शन जो है वो मॉनिटरिंग करता है, यानी कि जो कंप्लायंस की जा रही है, कंप्लायंस फंक्शन परफॉर्म की जा रहा है उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनकी टेस्टिंग भी करता है। ठीक है, फर्दर इट्स रिलेटेड टू रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी डायरेक्शंस दी गई हैं उनके साथ भी तो हमें कंप्लाई करना होता है, तो क्योंकि टाइम बाउंड मैनर में हमें कंप्लाई करना होता है, लेकिन नहीं तो अदरवाइज प्यूनिटिव एक्शन भी यहाँ पर जो अथॉरिटीज है उनके द्वारा लिया जा सकता है। फर्दर रिलेटेड टू ब्रॉड कंटूर्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क इन द एनबीएफसी ओवर देयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में। तो कंप्लायंस पॉलिसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बोर्ड अप्रूव्ड क्लियरली स्पेल्ड आउट पॉलिसी होती है कि किस तरह से आप इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा कंप्लाई करेंगे। उसके रिलेटेड यहाँ पर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या फिलॉसफी है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कल्चर रहने वाला है, वो सभी चीजें यहाँ पर रहती हैं। ठीक है, जैसे जो यहाँ पर कंप्लायंस फंक्शन का हेड होता है वो यहाँ पर होता है सीसीओ, जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सीसीओ इज बेसिकली चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ओवर देयर, एंड वो बेसिकली क्या करते हैं, वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कंप्लायंस रिस्क कहाँ कहाँ पर है, कितना रिस्क है, दैट इज असेसिंग द क्रेडिट, असेसिंग द कंप्लायंस रिस्क ओवर देयर। फॉर द कंप्लायंस रिस्क को मॉनिटर करना, उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना, एंड फर्दर उसको रिपोर्ट करना। ठीक है, वो सभी फंक्शंस इनके पास होते हैं। एंड इस पॉलिसी को, जो कंप्लायंस पॉलिसी होती है, कम से कम इसको साल में एक बार रिव्यू करना जरूरी होता है। एंड क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो कंप्लायंस फंक्शन जो
होता है, इसको इंडिपेंडेंसी को इंश्योर करना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि यहाँ पर इनके पास पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट होकर तभी ये प्रॉपरली रिव्यू कर पाएंगे। एंड फर्दर हमें इन्हें अथॉरिटी भी देनी है, ताकि इनके पास ये पावर है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने असेस करना है तो ये डेफिनेटली उनको एक्सेस कर पाए एंड डेफिनेटली कंप्लायंस को चेक कर पाए। एंड फोकस ऑन वेरियस रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरली जो आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस करना होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई गाइडलाइन दी थी उसको फॉलो करना है, कंप्लाई करना है, ये वो सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ती हैं। एंड फर्दर मॉनिटरिंग किस तरह से कर रहे हैं वो चीजें होंगी। एंड फर्दर रिपोर्टिंग इनको आगे सीनियर मैनेजमेंट के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मैनेजमेंट अपने रिपोर्टिंग करनी है, उसके बारे में हो गया। फर्दर कंप्लायंस स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो हेड किया जाएगा सीसीओ के द्वारा, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के द्वारा। एंड एनबीएफसीज को यहाँ पर फ्री रखा गया है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर बना सकते हैं कंप्लायंस कल्चर, कंप्लायंस फंक्शन को लेकर के। उसके रिलेटेड कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि कंप्लायंस फंक्शन जो होगा उसके चीफ जो होंगे दैट विल बी द सीसीओ ओवर देयर। अगर कंप्लायंस प्रोग्राम की बात करते हैं तो एनुअल रिव्यू यहाँ पर किया जाएगा कंप्लायंस प्रोग्राम का, जो कि सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। एंड उसमें पर्टिकुलरली जो भी आपके फेलियर हुए थे पिछले सालों में उनको देखा जाएगा कि उसमें जो भी कमी पेशियां थी वो दोबारा से रिपीट तो नहीं हो रही है। एंड फर्दर जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी उन सभी को यहाँ पर देखा जाएगा जो पिछले साल में इशू की गई थी, तो कि उनके साथ कंप्लाई करने के लिए क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर लिए गए हैं। एंड जो भी फेयर प्रैक्टिसेस कोड से क्या उनके साथ हम अडेयर कर पा रहे हैं, जो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है उनके साथ अडेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देन इट्स रिलेटेड अथॉरिटी, तो जो सीसीओ है एंड कंप्लायंस फंक्शन है इनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि ये कम्युनिकेट कर पाए किसी भी स्टाफ मेंबर्स के पास, एंड साथ के साथ जो भी इनको डाटा फाइल्स एक्सेस करनी है, रिकॉर्ड्स एक्सेस करने हैं उनको ही एक्सेस कर पाए, ताकि जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको ये फेयरली यहाँ पर आगे चला पाए। डुअल हेटिंग एक्चुअली मेरे पास 2-3 काम हो जो आपस में इंटरफेयर हो रहे हो, तो सीसीओ के पास ऐसे कोई भी कामकाज और अलग से नहीं होना चाहिए जो उनकी खुद की काम के साथ क्या करें, इंटरफेयर करें। तो उस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्यूअल हेडिंग ना हो। फर्दर इट्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ सीसीओ ओवर देयर, तो यहाँ पर सीसीओ को कम से कम 3 साल के पीरियड के लिए मिनिममली आगे रखा जाता है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में अगर बोर्ड या बोर्ड ऑफ कमेटी चाहती है तो 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दी जा सकती है। लेकिन वो तभी दी जा सकती है अगर आपके पास फर्दर जो सक्सेशन प्लानिंग है वो प्रॉपरली रेडी है, यानी कि अगला पर्सन रेडी है आने के लिए। फर्दर रिमूवल की बात करें, सीसीओ को ट्रांसफर किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है बिफोर कंप्लीटिंग द टेन्योर, यानी कि अगर उन्होंने कंप्लीट नहीं किया टेन्योर तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में टेन्योर कंप्लीट करने से पहले भी उनको यहाँ पर रिमूव किया जा सकता है, उनको आगे ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन वहां पर एक्सप्लिसिट यानी कि रिटर्न में यहाँ पर एक ऑर्डर लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड से या बोर्ड कमेटी से, एंड वेल डिफाइंड आपको ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को यहाँ पर अपनाना पड़ेगा कि आपने ऐसी चीजें क्यों करी हैं। अगर रैंक की बात करें, सीसीओ जो है सीईओ से 2 रैंक कम से पर्सन नहीं हो सकता, यानी कि अगर सीईओ जो है 7th रैंक का पर्सन है तो सीसीओ जो होगा वो 5वें रैंक से कम नहीं हो सकता। स्किल्स की बात करें तो यहाँ पर सीसीओ के पास मल्टी डाइवर्स पर्सन होना चाहिए, उनके पास रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड, लीगल डिपार्टमेंट से रिलेटेड, एंड सेंसिटिव पर्टिकुलरली किस तरह से डील करना है, एक्सपेक्टेशन, सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन के साथ, सेंसिटिविटी के साथ कैसे डील करना है, उसके रिलेटेड एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। स्टेचर की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली उनके पास पावर होनी चाहिए, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड, रेगुलेटर से बातचीत करने से रिलेटेड। कंडक्ट की बात करें तो उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो साफ सुथरा होना चाहिए एंड अनक्वेश्चनेबल इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करती है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल होता है वो यहाँ पर बोर्ड ही देता है। एंड फर्दर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, अगर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो अगर सीसीओ को प्रीमेच्योर ट्रांसफर किया जा रहा है या फिर उनको अपॉइंटमेंट से पहले यहाँ पर हटा दिया जा रहा है, अर्ली रिटायरमेंट हो रही है या फिर सीसीओ को रिमूव किया जा रहा है, उसके केस में प्रायर इंटीमेशन, यानी कि ऐसे स्टेप लेने से पहले आपको एक प्रायर इंटीमेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो यहाँ पर सुपरवाइजरी मैनेजर है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के अंडर आते हैं, उनको इंटीमेशन, प्रायर इंटीमेशन भेजनी पड़ेगी। रिपोर्टिंग लाइन की बात करें तो सीसीओ जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे एमडी को, सीईओ को, बोर्ड या फिर बोर्ड कमेटी को, राइट। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। एंड फर्दर इसमें यहाँ पर एसएमई जो था यहाँ पर इसमें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं वो हैं यहाँ पर, एंड एक्टिविटीज जो है यहाँ पर इन एंटरप्राइजेज से रिलेटेड उनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है मैन्युफैक्चरिंग एंड फर्दर दूसरी है सर्विसेज कैटेगरी। पहली जो हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी एंड द सेकंड वन इट इज रिलेटेड टू द सर्विसेज कैटेगरी। एंड नई डेफिनेशन जून 1 2020 में आई थी एंड अप्लाई हो गई थी जुलाई 1 2020 से ही। पहले यहाँ पर डेफिनेशन क्राइटेरिया जो था उसे यहाँ पर चेंज कर दिया गया था, नई डेफिनेशन के हिसाब से 2 क्राइटेरिया यहाँ पर ऐड अप किए गए थे जो कि थे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी में, इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, एंड दूसरा फैक्टर जो था दैट वाज रिलेटेड टू टर्नओवर,
वो यहां पर टर्नओवर से रिलेटेड था। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं यहां पर। पहला क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, दूसरा क्राइटेरिया है यहां पर हमारे पास कि यहां पर टर्नओवर क्या है यूनिट की। दोनों में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया जंप ओवर कर जाता है टू द नेक्स्ट कैटेगरी तो उसे यहां पर प्रीवियस कैटेगरी में नहीं माना जाएगा, नई कैटेगरी में माना जाएगा। तो आपको एग्जांपल के साथ मैं यहां पर समझाऊंगा कि मैं किस बेस पर यह चीज कह रहा हूं। तो आइए सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहां पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर का क्राइटेरिया मैंने लिखा है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक की है, टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ तक की है, तो उसे माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा। एंड इसी तरह से अगर आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक की है इन्वेस्ट, एंड आपके पास जो टर्नओवर है वो यहां पर 5 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक की है, उसे स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। एंड फर्दर जहां पर जो आपके पास जो टर्नओवर है वो यहां पर 50 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ तक की है, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा है, 50 करोड़ तक की है, उसे यहां पर मीडियम एंटरप्राइज कंसीडर किया जाता है। तो यहां पर एक फर्म की हम बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू एबीसी फर्म ओवर हियर। एंड फर्दर उसके पास जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 50 लाख रुपीज, वो कितनी है, 50 लाख रुपए की है। एंड उसकी जो टर्नओवर है दैट इज 6 करोड़ रुपीज। तो उसे यहां पर कौन से यहां पर एंटरप्राइज माना जाएगा, उसे माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा या फिर स्मॉल एंटरप्राइज माना जाएगा। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी आपको यहां पर आंसर कर देना है। एबीसी फर्म की यहां पर मैं बात कर रहा हूं जिसके रिलेटेड जो उसका इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख रुपए का है यहां पर प्लांट मशीनरी में, इक्विपमेंट में। एंड फर्दर उसकी जो टर्नओवर है दैट इज 6 करोड़ रुपीज। तो उसकी क्लासिफिकेशन यहां पर माइक्रो में होगी, स्मॉल में होगी या फिर मीडियम एंटरप्राइज में होगी। एंड यहां पर जो भी एमएसएमईज हैं उनके लिए कुछ एक मैंडेटरी चीजें लागू कर दी गई हैं, जैसे कि उद्यम पोर्टल में उनको यहां पर रजिस्टर करना होगा, जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाएगा। तो वो सभी चीजों को भी हम यहां पर गो थ्रू करने वाले हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काइंडली प्लीज आप नोट कर लीजिए। दैट वुड बी लिस्टेड टू द स्मॉल कैटेगरी, वेरी राइट, स्मॉल कैटेगरी में ही उसको यहां पर लिस्ट किया जाएगा, उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस में ही लिस्टिंग यहां पर मिलेगी। Is that clear? Is that particular thing clear? Then further it is related to loan to MSME are covered under the priority sector। तो MSME जो है वो यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीडीपी के रिलेटेड। एंड फर्दर अगर एक एंटरप्राइज, सेम चीज यहां पर लिखी गई है, इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसेस एनी ऑफ द क्राइटेरिया इट विल नॉट बी क्लासिफाइड इन दैट क्राइटेरिया एंड फर्दर विल बी बेस्ड ऑन द हायर कैटेगरी एंड नॉट इन द लोअर कैटेगरी। इज दैट क्लियर? इज दैट पर्टिकुलर थिंग क्लियर? एंड फर्दर जितने भी एमएसएमईज हैं, चाहे वो नई हैं चाहे वो पुरानी हैं, उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में रजिस्टर करना होगा। जब आप उद्यम में अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, आपको उद्यम के द्वारा यहां पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जो कि यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। एंड ई सर्टिफिकेट भी आपको यहां पर इशू किया जाएगा जिसको ऑनलाइन वेरीफाई किया जा सकता है। एंड फर्दर यूनिट्स को यहां पर आईटीआर एंड जीएसटी यानी कि जीएसटीआर, एक तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी होगी एंड साथ ही साथ जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न है, वो भी यहां पर फाइल करनी होगी ताकि वो एमएसएमई का जो स्टेटस है उसे यहां पर मेंटेन करने पड़ेंगे। यूनिट्स को यहां पर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। एंड फर्दर यहां पर एक चीज बोली गई है कि अगर मान लीजिए पर्सन ए है, यहां पर पर्सन ए है एंड इसके पैन कार्ड के अगेंस्ट यहां पर इसने डिफरेंट फर्म्स बना दी, फर्म 1, फर्म 2 एंड फर्म 3। अब यहां पर पैन कार्ड तो इसी का इस्तेमाल हुआ है एंड इसका पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए इसने जीएसटी नंबर ले लिए, जीएसटी 1, जीएसटी 2 एंड जीएसटी 3। तो यहां पर इनका जो यहां पर क्राइटेरियन होगा, इनका जो क्लासिफिकेशन होगा वो यहां पर कलेक्टिव बेस पर क्लासिफिकेशन होगा, वो यहां पर क्लासिफिकेशन जो होगा वो कलेक्टिव बेस पर क्लासिफिकेशन होगा। कहने का मतलब है कि तीनों फर्म्स का यहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी टर्नओवर है, उसको कंबाइन कर लिया जाएगा, उसके हिसाब से इनको कंसीडर किया जाएगा। एंड फर्दर इनको कलेक्टिवली एक ही एंटरप्राइज माना जाएगा, इनको कलेक्टिवली यहां पर एक ही एंटरप्राइज यहां पर कंसीडर किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर जब भी हम यहां पर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे तो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर जो भी कॉस्टिंग आई है सिर्फ वो कंसीडर होगी, जो आपने जीएसटी पार्ट उसके ऊपर पे किया है वो यहां पर इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा, वो यहां पर इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा। एंड अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एंड आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इंडस्ट्री सेफ्टी डिवाइसेस के ऊपर, लैंड के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, फर्नीचर फिटिंग के ऊपर कोई खर्चा किया है, उसको भी यहां पर प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में शामिल नहीं किया जाएगा।
तो यानी कि आपकी जो कोर चीजें हैं जिनके थ्रू आप यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, सिर्फ उसकी कॉस्ट को यहां पर शामिल किया जाएगा, ना तो उसके ऊपर लगने वाले जीएसटी को शामिल किया जाएगा, ना ही आपने कंट्रोल से रिलेटेड यहां पर अगर कोई रियायत ली है, अगर आपने R&D करनी है, अगर आपने यहां पर सेफ्टी डिवाइसेस बनाने हैं, लैंड बिल्डिंग है, उनको भी यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड फर्दर अगर हम यहां पर टर्नओवर पैरामीटर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी टर्नओवर है उसको यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन भी बनती है। मान लीजिए यहां पर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइजेस है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज है, एंड फर्दर इसकी एक्सपोर्ट की जो टर्नओवर है दैट इज 280 करोड़ रुपीस, ये है इसकी 280 करोड़ रुपीस। तो क्या इसको माइक्रो एंटरप्राइज माना जाएगा या फिर इसको यहां पर एमएसएमई कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, या फिर इसको एमएसएमई कंसीडर ही नहीं किया जाएगा? व्हाट वुड बी द आंसर रिलेटेड टू इट? तो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट रिलेटेड जो टर्नओवर होती है उसको हम क्राइटेरियन में कंसीडर नहीं करते हैं, उसको हमने एक्सक्लूड करना होता है, ये चीज मैंने आपको बताई है। एंड फर्दर यहां पर एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यहां पर एंटरप्राइज है जिसके केस में एक्सपोर्ट की उसकी जो टर्नओवर है दैट इज 280 करोड़ रुपीस। वो कितनी है यहां पर? 280 करोड़ रुपीस है। एंड फर्दर यहां पर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, लेट अस से कि ये यहां पर 30 लाख रुपए की है, इन्वेस्टमेंट जो है वो यहां पर 30 लाख की बताई गई है। तो यहां पर इसको क्राइटेरिया क्या रहेगा? इसको हम यहां पर स्मॉल एंटरप्राइज में शामिल करेंगे, मीडियम एंटरप्राइज में शामिल करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज में शामिल करेंगे, या फिर एमएसएमई में ये शामिल ही नहीं होगा? क्योंकि अगर हम यहां पर टर्नओवर क्राइटेरिया देखते हैं तो ये एमएसएमई का पार्ट तो बनता ही नहीं है। तो क्या हम यहां पर इसको एमएसएमई का पार्ट मानेंगे या फिर नहीं मानेंगे? काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर कर दीजिए कि क्या क्राइटेरियन यहां पर रहने वाला है रिलेटेड टू इट। तो इसको हम यहां पर माइक्रो एंटरप्राइज कंसीडर करेंगे। कौन सी एंटरप्राइज कंसीडर करेंगे? माइक्रो एंटरप्राइज कंसीडर करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी कहती है कि जब हम टर्नओवर पैरामीटर की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी आपने एक्सपोर्ट किया है उसको हम यहां पर टर्नओवर कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, उसको हम टर्नओवर कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो 280 करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड थी, तो इसको हम कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्राइटेरिया जो है वो इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया के बेस पर इसकी जो क्लासिफिकेशन एंटरप्राइज की वो यहां पर माइक्रो एंटरप्राइज में की जाएगी। दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द माइक्रो एंटरप्राइजेस। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है कि नहीं हो गई है? काइंडली डू कंफर्म। फर्दर टर्नओवर एंड एक्सपोर्ट टर्नओवर विल बी लिंक्ड टू द इनकम टैक्स एक्ट। पहले क्या होता था कि आपकी जो इंफॉर्मेशन होती थी वो इंटरलिंक्ड नहीं रहती थी, लेकिन अब ये जो इंफॉर्मेशन रहेगी दैट वुड बी इंटरलिंक्ड। लेकिन जो पहली बार जिन्होंने यहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है उनको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, उनको यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। अदर देन दैट यहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका डाटा है वो जीएसटी रिटर्न से यहां पर डाटा जो होगा वो लिंक्ड हो जाएगा, एंड फर्दर उसकी बेस पर आपकी टर्नओवर का जो फील्ड है वो अपने आप यहां पर ऑटोमेटेड फिल आउट हो जाएगा, वो ऑटोमेटेड यहां पर फिल आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट। क्या ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई है? जल्दी से जल्दी यहां पर इस पार्ट को फर्दर क्लियर कर दीजिए। Okay, next it is related to the delayed payments. Next it is related to delayed payments. तो अब यहां पर किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा चीज तंग क्या करती है? उधार तंग करता है। जब आप उधार के ऊपर सामान दे देते हैं तो वो चीज सबसे ज्यादा तंग करती है, वो आपके वर्किंग कैपिटल साइकिल को बिगाड़ देती है। वर्किंग कैपिटल साइकिल हमने पढ़ा था, कैश आपके पास था, आपने यहां पर रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको यहां पर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, उसको यहां पर सेल कर दिया। यहां तो कैश में सेल कर देंगे या फिर उधार पर बेचेंगे। अगर उधार पर बेचेंगे तो ये आपके वर्किंग कैपिटल यानी कि जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है उसको यहां पर क्या कर देता है? इलोंगेट कर देता है, उसको और यहां पर बढ़ा देता है, उसको इलोंगेट कर देता है, उसको और यहां पर बढ़ा देता है। सो एमएसएमईडी जो एक्ट है यहां पर वो प्रोवाइड करता है कि डिलेड पेमेंट से रिलेटेड जो यहां पर प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको यहां पर किस तरह से निपटाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। यानी कि जो भी यहां पर बायर है जिसने उधार के ऊपर यहां पर सामान लिया है, जो भी यहां पर बायर है जिसने यहां पर एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से उधार पर सामान लिया है, वो यहां पर अग्री करेगा कि उसे 45 मैक्सिमम
45 डेज के अंदर अंदर यहां पर पैसा जो है वो एमएसएमई को वापस करना पड़ेगा। एंड फर्दर वो यहां पर वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द एमएसएमई सप्लायर, वो यहां पर एमएसएमई सप्लायर को इंटरेस्ट भी पे करेगा, वो यहां पर एमएसएमई सप्लायर को इंटरेस्ट भी पे करेगा। एंड फर्दर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, दैट इज अ समाधान पोर्टल, दैट इज अ समाधान पोर्टल, जिसके तहत यहां पर जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं कंट्री में, वो डायरेक्टली जो भी उनके केसेस हैं जिनमें यहां पर उनकी पेमेंट्स जो वो यहां पर डिलेड हो गई हैं, वो ऑनलाइन यहां पर इस पोर्टल में डाल सकेंगी। समाधान पोर्टल यहां पर इशू किया गया है, लॉन्च किया गया था यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फर्दर जो एमएमएसएमई है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, एमसीए है, यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की थी, यहां पर इन्होंने नोटिफिकेशन इशू की थी। एंड फर्दर इन्होंने यहां पर डायरेक्ट किया था स्पेसिफाइड कंपनीज को कि एमएसएमई के साथ जो भी उनका लेना देना है एंड फर्दर जो भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स पड़ी हैं उसकी रिटर्न हमें जरूर भेजें, उसकी रिटर्न हमें जरूर भेजें। यानी कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो सबसे ज्यादा तंग करते हैं, सबसे लेट पेमेंट्स करते हैं। तो यहां पर ये कहा गया कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स जो है वो अगर एमएसएमई के साथ डील कर रहे हैं, अगर वो एमएसएमई के साथ डील कर रहे हैं तो उनको यहां पर एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उनको यहां पर एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने सभी कंपनीज को यह डायरेक्ट किया है जो भी यहां पर सप्लाईज ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस से, उसके केस में अगर वो 45 डेज में पैसा पे नहीं करते हैं तो उसके केस में जो भी कंपनीज हैं उनको एक हाफ ईयरली रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। एंड फर्दर वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को यहां पर सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें यह बताना पड़ेगा कितना अमाउंट यहां पर पेमेंट का ड्यू है जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को अभी पे करने वाला पड़ा है। एंड फर्दर डिले का क्या रीजन है वो भी यहां पर बताना पड़ेगा, डिले का क्या रीजन है वो भी यहां पर बताना पड़ेगा। एंड फर्दर एमसीए यानी कि जो हमारे पास यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उन्होंने भी यहां पर डायरेक्ट किया है स्पेसिफाइड कंपनीज को कि यहां पर जो भी उनके अमाउंट ड्यूज आउटस्टैंडिंग है टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस वो यहां पर फॉर्म 1 की फॉर्म में यहां पर सबमिट करवाएं। एंड इसके रिलेटेड उन्होंने भी कहा कि हाफ ईयरली रिटर्न करेगी। तो एमएमएसएमई में यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ने यहां पर सभी कंपनीज को डायरेक्ट किया कि वो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास यहां पर हाफ ईयरली रिटर्न जमा करवाएंगे। यानी कि माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के रिलेटेड उनके जितने भी यहां पर अमाउंट ड्यू बकाया है, कितना अमाउंट ड्यू है, उसका क्या रीजन है, उसके बारे में बताना पड़ेगा। एंड उन किस केस में जहां पर जो अमाउंट ड्यू है उसमें 45 डेज एक्सीड हो चुके हैं। इज दैट क्लियर? फर्दर इट इज रिलेटेड टू सर्विसेज एंटरप्राइजेस। तो सर्विसेज एंटरप्राइजेस वो होते हैं जो किसी भी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड इनका क्राइटेरियन भी यहां पर इन्वेस्टमेंट बेस्ड है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है एंड फर्दर जो इनकी टर्नओवर है उसके बेस है। तो इसमें यहां पर स्मॉल रोड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, स्मॉल बिजनेसेस हो गए, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज एंटरप्राइजेस हैं, वो सभी यहां पर सर्विसेज एंटरप्राइजेस में आते हैं। जैसे कि लर्निंग सेशन भी है, वो भी एक सर्विस एंटरप्राइज है बिकॉज वी आर आल्सो रेंडरिंग द सर्विसेज टू यू गाइस। ओके, तो यहां पर जो भी पर्सन यहां पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो यहां पर क्या रहेगा, सर्विस एंटरप्राइज में शामिल होगा। एंड फर्दर इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस, इन केस ऑफ सर्विस एंटरप्राइजेस जो भी यहां पर फर्नीचर फिटिंग जो है जो डायरेक्ट रेंडरिंग टू द सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है वो यहां पर ओरिजिनल कॉस्ट में शामिल नहीं होगा, पहले बता दिया मैंने आपको। एंड फर्दर जो भी यहां पर फिटिंग्स हैं, जो भी यहां पर प्लांट मशीनरी है, जो भी यहां पर लैंड बिल्डिंग है वो भी शामिल नहीं होगी। इसके अलावा जो भी कॉस्ट शामिल की जाएगी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट में, उसमें जो भी जीएसटी का पार्ट लगा है वो यहां पर बीच में शामिल नहीं किया जाएगा, जीएसटी का जो पार्ट लगा है वो भी यहां पर बीच में शामिल नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। एंड फर्दर द सर्विस एंटरप्राइजेस कवर द एक्टिविटीज विच आर ऑफ सर्विसेज नेचर, जो सर्विसेज नेचर की हैं वो कंसल्टेंसी से रिलेटेड हो सकती हैं, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो सकती हैं, ऑटो रिपेयर सर्विसेज, गैरेजेस से रिलेटेड हो सकती है। एंड फर्दर कोई भी अंडरटेकिंग जो यहां पर रिपेयर से, सर्विसिंग के, मशीनरी से रिलेटेड है, यानी कि कोई भी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है वो यहां पर इसमें कवर अप हो जाएगी, वो यहां पर इसमें कवर अप हो जाएगी। इज दैट क्लियर? Then it is related to policy package for MSME। लेकिन इससे पहले एक क्वेरी है बाय स्टूडेंट ओवर हियर, इट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट पॉइंट, द्वारा से बता दो। तो मैंने आपको यहां पर बताया कि मान लीजिए फर्म ABC ओवर हियर है एंड फर्दर ये यहां पर डोमेस्टिक पार्ट में जो यहां पर इसकी टर्नओवर है, यानी कि डोमेस्टिक यहां पर अपनी खुद की कंट्री में जो सामान इसके द्वारा खरीदा बेचा जा रहा है वो यहां पर 4 करोड़ की टर्नओवर, वो कितने की, 4 करोड़ की टर्नओवर है, ठीक है। एंड फर्दर जो यहां पर ये एक्सपोर्ट कर रही है उसकी टर्नओवर, एक्सपोर्ट की जो टर्नओवर है डेट इज 250 करोड़, वो 250 करोड़ की टर्नओवर है इसकी। एंड फर्दर जो इसकी इन्वेस्टमेंट है
जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो इसकी 40 लाख रुपए की है, वो इसकी 40 लाख रुपए की है। तो यहां पर डेफिनेशन का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि एक्सपोर्ट्स रिलेटेड जो भी टर्नओवर होगी उसको आपने कंसीडर नहीं करना while considering the turnover criteria, while considering the turnover criteria, आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसीडर नहीं करना है, आपने एक्सपोर्ट टर्नओवर को कंसीडर नहीं करना है। तो हमने उसको छोड़ दिया, तो टर्नओवर कितनी रहेगी, 4 करोड़ रहेगी। तो इसकी यहां पर डेफिनेशन के हिसाब से 5 करोड़ तक की टर्नओवर अगर होती है तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज में रखते हैं ना, तो ये माइक्रो एंटरप्राइज में इसको रखा जाएगा, ना कि इसको हम एमएसएमई में शामिल ना करें। क्योंकि अगर यहां पर मान लीजिए टोटल टर्नओवर वैसे अगर हम देखें तो 250 करोड़ प्लस हो गई, तो ये एमएसएमई का पार्ट बनती ही नहीं है। लेकिन क्योंकि एक्सपोर्ट टर्नओवर जो है वो यहां पर इंक्लूड करनी नहीं है, तो ये यहां पर माइक्रो एंटरप्राइज हमारी काउंट होगी। इज दैट क्लियर? ये चीज यहां पर क्लियर हो गई है। काइंडली प्लीज डू कंफर्म एट द अर्लीस्ट, जल्दी से जल्दी यहां पर कंफर्म कर दीजिए। ओके, देन इट इज रिलेटेड टू द पॉलिसी पैकेज फॉर एमएसएमई, पॉलिसी पैकेज फॉर एमएसएमई। तो गवर्नमेंट ने यहां पर सर्टेन मेजर्स यहां पर लगाई हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर यानी कि एमएसएमई सेक्टर जो है ये हमारी कंट्री को रिवाइव करने वाला सेक्टर है, एंड फर्दर इसमें आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू यहां पर क्या किया, इंप्लीमेंट किया है चीजों को कि एमएसएमई को किस तरह से और बढ़ावा दिया जाए। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर की जो टास्क फोर्स थी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर, जिसको चेयर किया था टीके नैयर ने, उनके द्वारा यहां पर रिकमेंडेशंस दी गई थी। उनको रिकमेंडेशन में ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को कहा है कि हमें ईयर ऑन ईयर YOY जो यहां पर ग्रोथ चाहिए क्रेडिट में, यानी कि जो भी यहां पर लोन सैंक्शन किया जाएगा, जो भी यहां पर लोन सैंक्शन किया जाएगा माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को खास करके, उसमें YOY ग्रोथ यानी कि ईयर टू ईयर जो ग्रोथ चाहिए दैट इज 20%। अगर पिछले साल 100 करोड़ था तो अगले साल 120 करोड़ चाहिए, अगले साल 120 करोड़ होगा तो उससे अगले साल कितना चाहिए, 144 करोड़ चाहिए, तो 142 करोड़ चाहिए। तो इससे रिलेटेड है हमें हर साल 20% की ग्रोथ चाहिए, हमें हर साल 20% की ग्रोथ चाहिए। इसी तरह से जो अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं उसमें यहां पर एनुअल ग्रोथ जो है 10% की चाहिए, एनुअल ग्रोथ यहां पर 10% की चाहिए माइक्रो एंटरप्राइजेस के अकाउंट्स को लेकर के। एंड फर्दर बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू यहां पर कि वो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस फोकस्ड ब्रांचेस खोले, जहां पर देखिए एक ना होता है एमएससी क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि जहां पर हब बन जाता है, जैसे डिफरेंट माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो यहां पर आपस में हब बन गया, यानी कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री बन गई जहां पर सिर्फ और सिर्फ एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइजेस ही हैं। तो यहां पर अगर एक माइक्रो एंटरप्राइज का क्लस्टर है एंड उस पर इन सभी क्लस्टर्स को, इन सभी यहां पर जो यहां पर हमारे पास एंटरप्राइजेस हैं इनको सर्व कर सकता है, ये उनको सर्व कर सकती है। उसके रिलेटेड यहां पर कहा गया कि आप यहां पर एमएससी फोकस्ड ब्रांचेस बनाएं एंड क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करें, एंड कम से कम एक क्लस्टर को अडॉप्ट करें। इज दैट क्लियर? फर्दर बैंक्स में इनिशिएट नेसेसरी स्टेप्स टू रैशनलाइज द कॉस्ट ऑफ लोन्स, कि यहां पर कॉस्ट को कैसे कम किया जाए, एंड एक ट्रांसपेरेंट रेटिंग बेस्ड सिस्टम होना चाहिए जिसको यहां पर यूज करते हुए आप इन एंटरप्राइजेस को रेटिंग करें एंड फर्दर उसके बेस पर इनको लेंडिंग की जा सके, यानी कि क्रेडिट बेस्ड लेंडिंग आप यहां पर इनको करें। क्रेडिट रेटिंग करने के लिए आपके पास एक ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर होना चाहिए। एंड इवन यहां पर सिडबी ने, यहां पर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, यहां पर इसने यहां पर टूल्स भी बनाए। कौन कौन से टूल्स हैं? एक कार्ट है एंड दूसरा रैम है। कार्ट इज बेसिकली क्रेडिट अप्रेजल एंड रेटिंग टूल, एंड फर्दर दूसरा है रैम, दैट इज रिस्क असेसमेंट मॉडल, दैट इज रिस्क असेसमेंट मॉडल। एंड फर्दर एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मॉडल बनाया जा रहा है, इसका एसएमएस के लिए बनाया जा रहा है, जिसका कि बैंक्स जो है यहां पर एडवांटेज ले सकते हैं रेटिंग करने के टाइम पर। यानी कि जब भी क्रेडिट रेटिंग करनी है तो बैंक्स को यहां पर स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए क्रेडिट रेटिंग करने के लिए एंड फर्दर लेंडिंग करने के लिए। तो उसके लिए सिडबी ने यहां पर टूल्स बनाए हैं, वन इट इज कार्ड एंड अदर वन इट इज अ रिस्क असेसमेंट मॉडल, यानी कि किसी एंटरप्राइज में कितना रिस्क यहां पर है, कौन कौन से रिस्क मौजूद है, उनको यहां पर जांचने के लिए, उनको क्वांटिफाई करने के लिए एंड फर्दर यहां पर अप्रेज करने के लिए, जो भी एंटरप्राइजेस हैं उनको अप्रेज करने के लिए मॉडल यहां पर बनाए गए हैं। फर्दर इट इज रिलेटेड टू सिडबी इन एसोसिएशन विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, सिडबी इन एसोसिएशन विद द क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, यहां पर ये सेटअप कर रही है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, यहां पर ये सेटअप कर रही है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बता देना चाहता हूं कि अगर एमएससी को कोई लोन दिया जाता है 10 लाख तक का, तो उसके केस में किसी भी तरह की कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एमएससी को लोन दिया जाता है 10 लाख तक का, उसके केस में किसी भी तरह की कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड जहां पर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो यहां पर ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है, उसके केस में ये जो लिमिट है वो बैंक के द्वारा बैंक की डिस्क्रिप्शन के ऊपर 25 लाख तक की भी की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी तरह की कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी।
जिसके लिए किसी भी तरह की कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फर्दर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रखनी है फाइनेंसिंग पर्पसेस के लिए, जिसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है उसको हम कर सकें एंड फर्दर जो रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके। एंड फर्दर जो भी केवीआई को लेंडिंग की जाएगी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज को लेंडिंग की जाएगी, दैट विल बी एलिजिबल फॉर द क्लासिफिकेशन अंडर सब टारगेट ऑफ 7.5% टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस। तो माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए एक सब टारगेट है कितने का, 7.5% का एक सब टारगेट रहता है। तो यहां पर अगर आपने लेंडिंग करनी है तो 7.5% का एक सब टारगेट होगा, जिसके तहत आप यहां पर क्या करेंगे, जिसके तहत आप यहां पर उसको शामिल कर सकते हैं अपने सब टारगेट के केस में। अब जल्दी से जल्दी कुछ एक क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चंस को यहां पर देख लेते हैं, उनके बारे में आप सभी जरूर आंसर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिलेटेड टू वीकर सेक्शन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में जरूर लिखने हैं एंड उनका आंसर करना है आपने। तो वीकर सेक्शन के रिलेटेड यहां पर, तो वीकर सेक्शन के रिलेटेड यहां पर क्या टारगेट है, व्हाट इज द टारगेट फॉर वीकर सेक्शन रिलेटेड टू द जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं उनके लिए, फॉर डोमेस्टिक बैंक्स के लिए एंड फर्दर फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स, फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स का क्या टारगेट है, जल्दी से जल्दी यहां पर आंसर करना है सभी को। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट। वीकर सेक्शन के लिए क्या टारगेट है एंड फर्दर डोमेस्टिक बैंक्स के लिए एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। तो यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि वीकर सेक्शन के लिए जो टारगेट है वो पहले 10% था, लेकिन अब उसे इंक्रीज कर दिया गया है 12% का, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अचीव करना है। एंड रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ये हमेशा से ही 15% रहा है। रीजनल रूरल बैंक का जो ओवरऑल टारगेट है दैट इज 75%। वो कितना है, 75% का ओवरऑल टारगेट है। इसी तरह से जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनके केस में भी 75% का ओवरऑल टारगेट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के केस में फिलहाल के लिए पहले 40% था 2020 में, अब उन्हें कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक अब 75% यहां पर इंक्रीज कीजिएगा टारगेट को। इसी तरह से यहां पर एग्रीकल्चर के केस में, अब की बार यहां पर एग्रीकल्चर के केस में, अदर्स कैटेगरी के केस में एंड फर्दर अंडर द एमएसएमई, अंडर द एमएसएमई यहां पर स्टार्टअप्स के लिए लैंडिंग का एक नया क्राइटेरिया रखा गया, जिसमें 50 करोड़ तक की जो भी लैंडिंग की जाएगी वो यहां पर इसमें शामिल की जाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जल्दी से जल्दी बता दीजिए, एक फार्मर है जिसकी जो लैंड होल्डिंग है दैट इज 3.5 एकड़, तो वो 3.5 एकड़ है। तो लैंड यहां पर फार्मर की कैटेगराइजेशन स्मॉल फार्मर में होगी या फिर मार्जिनल फार्मर में होगी, जल्दी से जल्दी यहां पर बता दीजिए। तो एक फार्मर है जिनकी लैंड होल्डिंग 3.5 एकड़ है, तो उसकी क्लासिफिकेशन यहां पर स्मॉल फार्मर में होगी या फिर मार्जिनल फार्मर में होगी। जल्दी से जल्दी आपको यहां पर आंसर कर देना है। पहले क्वेश्चन का जो सबसे पहले आंसर दिया था, सही आंसर दिया था, दैट वाज गिवन बाय द वंदना राज शिर्के। तो वंदना जी ने यहां पर सबसे पहले आंसर दिया था। एंड यहां पर सेकंड क्वेश्चन है कि 3.5 एकड़ लैंड होल्डिंग है, तो फार्मर जो है वो स्मॉल फार्मर है या फिर मार्जिनल फार्मर है। तो यहां पर सबसे पहले जो आंसर दिया है, सही आंसर दिया है, वो यहां पर रीमा बत्रा ने दिया है कि ये स्मॉल फार्मर की कैटेगरी है, क्योंकि मुझे पता है कि जहां पर लैंड होल्डिंग जो है वो यहां पर 2.5 एकड़ से ज्यादा है, अप टू 5 एकड़ है, अप टू 5 एकड़ है, तो वो यहां पर स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि जहां पर जो लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है, अप टू 2 हेक्टेयर्स है, वो यहां पर स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं, वो यहां पर स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। एंड फर्दर जल्दी से जल्दी आपको अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर जो मैं पूछने जा रहा हूं उसका आंसर करना है रिलेटेडली कि यहां पर अर्बन एरियाज में, यहां पर अर्बन एरियाज में जो रिपेयर के लिए लोन दिया जाता है, हाउसिंग लोन की रिपेयर के लिए, हाउसिंग लोन के लिए रिपेयर के लिए जो लोन दिया जाता है वो कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो यहां पर आपका शामिल रहेगा अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। वो यहां पर कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल रहेगा। अर्बन एरियाज में यहां पर अगर हाउसिंग लोन दिया जा रहा है रिपेयर एंड रेनोवेशन के लिए, तो कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में शामिल किया जाएगा। जल्दी से जल्दी यहां पर आप सबको आंसर कर देना है रिलेटेड टू दैट। तो पहले जो क्राइटेरियाज थे वो यहां पर चेंज हो चुके हैं, अभी क्राइटेरिया जो है वो कुछ और है। एंड फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी यहां पर जल्दी से जल्दी पूछ लेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको यहां पर बता देना है कि मेट्रो एरियाज में, नॉट रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, वी कैन से दोज एरियाज जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है, वेयर द पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 10 लाख, ओवर देयर यहां पर जो लिमिट है वो है 10 लाख रुपए की, जो यहां पर रिपेयर के लिए यहां पर दी जा सकती है। एंड फर्दर इन द अदर एरियाज द लिमिट इज 6 लाख रुपीज,
जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है वहां पर 6 लाख रुपए तक का लोन रिपेयर के लिए दिया जा सकता है। अदर एरियाज में यहां पर 10 लाख तक का जो लोन है वो यहां पर रिपेयर के लिए दिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 4 इट इज रिलेटेड टू कि एजुकेशन लोन के केस में, एजुकेशन लोन के केस में यहां पर लिमिट कितनी है? एजुकेशन लोन के केस में यहां पर लिमिट कितनी है? व्हाट इज द लिमिट इन द केस ऑफ द एजुकेशन लोन? तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है सबसे पहले जो दिया है दैट इज गिवन बाय वंस अगेन बाय वंदना। तो यहां पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी सबसे पहले वंदना जी ने दिया है एंड रिलेटेड टू फोन। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे पहले जो आंसर सही दिया है दैट इज गिवन बाय राहुल सोनी, दैट इज 20 लाख रुपीस, दैट इज 20 लाख रुपीस। तो यहां पर बता दीजिए कि अगर आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, अगर आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर यहां पर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाई जा रही है, इफ द हेल्थ केयर फैसिलिटी इज टू बी कंस्ट्रक्टेड और एस्टैब्लिश्ड, अगर यहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी यहां पर कोई एस्टैब्लिश की जा रही है तो उसके लिए कितना लैंड यहां पर अमाउंट जो है वो यहां पर दिया जा सकता है? आयुष्मान स्कीम के तहत यहां पर अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अगर यहां पर कोई लैंडिंग की जा रही है तो कितना अमाउंट यहां पर दिया जा सकता है? जल्दी से जल्दी यहां पर आपको बता देना है, आंसर कर देना है। काइंडली प्लीज डू आंसर एट द अर्लीस्ट कि आयुष्मान भारत स्कीम में, आयुष्मान भारत स्कीम में अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं एंड फर्दर उसके रिलेटेड यहां पर लैंडिंग की जाएगी तो कितना अमाउंट जो है वो यहां पर शामिल किया जा सकता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? तो सबसे पहले जो सही आंसर दिया गया है दैट इज गिवन बाय दी अमित मीना, दैट इज गिवन बाय दी अमित मीना। तो वैसे 5 करोड़ की लिमिट होती है लेकिन अगर आयुष्मान से लिमिट रिलेटेड है तो वो लिमिट जो है उसे डबल कर दिया गया है, 10 करोड़ तक का कर दिया गया है, उसे 10 करोड़ तक का कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर बताएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के केस में, कि रिन्यूएबल एनर्जी के केस में यहां पर लिमिट क्या है? कि जब मैं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करता हूं तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए यहां पर कितने अमाउंट तक का जो लोन है उसे यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जा सकता है। इंडिविजुअल लेंडिंग के केस में कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो यहां पर शामिल किया जा सकता है अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूं मैं, यहां पर इंडिविजुअल हाउस होल्ड पर्सन की बात कर रहा हूं तो यहां पर कितने अमाउंट तक का जो लोन है वो यहां पर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शामिल किया जा सकता है। वंस अगेन द राइट आंसर हैज बीन फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय वंदना ओवर हियर, दैट इज रिलेटेड टू 10 लाख रुपीस, कि 10 लाख तक का जो अमाउंट है वो यहां पर शामिल किया जा सकता है अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी इफ द लोन सैंक्शन इज अप टू रुपीज 10 लाख टू द इंडिविजुअल पर्सन ओवर हियर, टू द इंडिविजुअल पर्सन ओवर हियर। It's related to Payment and Settlement Systems Act 2007 over there। तो PSS एक्ट जो था वो यहाँ पर अगस्त 12 2008 में आया था एंड ये पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड फर्दर ये पर्टिकुलरली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एज अ डेजिग्नेटेड अथॉरिटी मानता है फॉर द सुपरविजन एंड रेगुलेशन पर्पसेस ओवर देयर एंड इस मैटर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर इसी एक्ट के अंदर मिल जाती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऑथराइज किया गया है कि वो यहाँ पर एक कमेटी बना सकता है जिसको हम सेंट्रल बोर्ड की तरफ से कमेटी के नाम से जानते हैं एंड इसका नाम BPSS है, that is Board for Supervision and Regulation of the Payment and Settlement System in India over there। तो BPSS जो है वो इसका नाम है एंड फर्दर ये अपनी पावर्स को एंड एग्जीक्यूट कर सकती है एंड अपने परफॉर्म जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकती है एंड उसके रिलेटेड जो पावर्स है वो PSS एक्ट 2007 में दी गई हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि इस एक्ट में कवर है। तो ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कवर करता है वो यहाँ पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 कवर करता है एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि कुछ एक वर्ड्स यहाँ पर एक्सप्रेशन इसमें यूज किए गए वो एज सच इस एक्ट में डिफाइन नहीं किए गए लेकिन वो जो डिफरेंट एक्ट है चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उनमें ऑलरेडी डिफाइंड है, वहां से जो मीनिंग है वहीं से उठाया गया एंड वो उन्हीं मीनिंग से रिलेट करता है। ठीक है, वो चीज यहाँ पर कही गई है। एंड अगर हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 लेट्स हैव अ लुक एट इट। बैंक की डेफिनेशन क्या होती है? वो बैंक जिसको सेकंड शेड्यूल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 में ऐड किया गया वो बैंक हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक हो गया, या फिर वो डेफिनेशन जो कि यहाँ पर जो सेक्शन 5 है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में उसमें डेफिनेशन दी गई उसके हिसाब से, या कोऑपरेटिव बैंक भी हो सकता है जिसको सेक्शन 56 के थ्रू यहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इंसर्ट किया गया है। एंड उसके बाद बात आती है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव पर्टिकुलरली वो होता है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू जो यहां पर होती है दैट्स बेसिकली बेस्ड ऑन द
underlying asset over there, जैसे कि फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, फॉरवर्ड्स एक्सेट्रा। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का मतलब होता है कि यहां पर हम पर्टिकुलरली किसी पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू या एटीएम के थ्रू या फिर हम यहां पर पर्टिकुलरली फंड्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं टेलीफोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, कार्ड पेमेंट के थ्रू, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर ओवर देयर, जिसमें हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई एक्सेट्रा इन सभी चीजों का यूज करते हैं। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम ओवर देयर। सो ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम जैसे आरटीजीएस होता है ना, वो पर्टिकुलरली ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। आरटीजीएस पर्टिकुलर क्या होता है, यानी कि ए ने बी को ट्रांसफर किए 3 लाख रुपए, ठीक है, एंड फर्दर बी ने ए को ट्रांसफर किए 2 लाख रुपए। तो यहां पर अगर ग्रॉस सेटलमेंट के हिसाब से देखें तो ग्रॉस सेटलमेंट के हिसाब से 2 ट्रांजेक्शन होंगी। एक ट्रांजेक्शन यहां पर ये सेटल होगी, दूसरी ट्रांजेक्शन यहां पर अलग से सेटल होगी, यानी कि दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग से सेटल हो रही हैं। लेकिन नेट सेटलमेंट के केस में क्या होता है कि नेटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होती है ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। जैसे कि नेफ्ट के केस में जो नेटिंग होती है वो हाफ आवर बैचेस के बेस में होती है, यानी कि अगर ये दो ट्रांजेक्शन हाफ आवर में हुई हैं तो नेट ट्रांजेक्शन क्या होगी कि ए ने बी को 1 लाख रुपए देने हैं, ये नेट ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। तो दैट इज द फंडा बिटवीन द नेट ट्रांजेक्शन एंड द ग्रॉस सेटलमेंट ट्रांजेक्शन। आई होप कि आपको यहां पर चीज समझ में आ गई होगी। फर्दर रिलेटेड टू इशूअर, इशूअर पर्टिकुलरली वो पर्सन होता है जो यहां पर एलईआई को यहां पर इशू करता है। एलईआई पर्टिकुलरली लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, यानी कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में मैं अगर किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना हो तो मुझे यहां पर उसे एक अलग से आइडेंटिटी देनी पड़ेगी, दैट इज द एलईआई, दैट इज द एंटिटी आइडेंटिफायर ओवर दे, तो कोई कोड यहां पर देना पड़ेगा, राइट। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर का मतलब है कोई यूनिक आइडेंटिटी कोड जो कि पर्सन को असाइन किया गया इशूर के द्वारा फॉर अ पर्सन सो एज टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन ओवर देयर। यानी कि जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहां पर उस पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक यूनिक कोड दे दिया, जैसे आरटीजीएस के केस में यूटीआर नंबर होता है, ठीक है, उस तरह से एक यूनिक कोड दे दिया। नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट इंस्ट्रक्शन। पेमेंट इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट, इसका मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑथराइजेशन किसी भी तरह के फॉर्म के ऊपर दी गई जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मींस भी शामिल है, जिसके थ्रू एक पर्सन या फिर जो सिस्टम पार्टिसिपेंट होता है या सिस्टम पार्टिसिपेंट या फिर किसी और पर्सन को यहां पर पेमेंट करना चाहता है, दैट्स द थिंग रिलेटेड टू, यानी पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। अब पेमेंट यहां पर पर्सन क्या होता है, पर्सन इज लाइक अ ह्यूमन पर्सन, ठीक है, एंड सिस्टम पार्टिसिपेंट क्या होता है, जो पर्टिकुलरली सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट लेवल के ऊपर, दैट्स द सिस्टम पार्टिसिपेंट ओवर देयर। वो पर्टिकुलरली पर्सन या तो सिस्टम पार्टिसिपेंट को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मैंने तेरे को इतने पैसे पे करने हैं, या पर्सन को, या पर्सन जो होता है वो सिस्टम पार्टिसिपेंट को यहां पर इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इतने पैसे इसको पे करने हैं, राइट। दैट्स द पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे दिया। लाइक आपको यहां पर फंड ट्रांसफर करने 1 लाख रुपए के अपने फ्रेंड को, राइट। तो उसके केस में ए ने बी को पैसे ट्रांसफर करने, ये तो ना कि बी को इंस्ट्रक्शन दे देगा, ए जो है वो यहां पर सिस्टम पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, एंड फॉर द सिस्टम पार्टिसिपेंट जो है अगले सिस्टम पार्टिसिपेंट को इंस्ट्रक्शन देगा। तो यही चीज क्या पर्टिकुलरली एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि यहां पर दी जाती है। फॉर द पेमेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है इनडेप्टनेस। अगर मैंने ये इंस्ट्रक्शन दे दी तो ये पर्सन यहां पर इंडेप्टेड हो गया इस पर्सन को, इसको पैसे देने पड़ेंगे। फर्दर ये जो सिस्टम पार्टिसिपेंट है वो यहां पर इंडेप्टेड हो जाएगा, यहां पर दूसरे यहां पर सिस्टम पार्टिसिपेंट को ले करके, क्योंकि वो पेमेंट इंस्ट्रक्शन यहां पर दी गई है। एंड उसके रिलेटेड जो ये पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो सकती है वो फंड ट्रांसफर के लिए भी हो सकती है, वो सिक्योरिटीज के लिए भी हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी हो सकती है, डेरिवेटिव के लिए हो सकती है, तो काफी ब्रॉड मीनिंग है। फर्दर सेटलमेंट की बात करते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब पेमेंट इंस्ट्रक्शन दी गई जिसमें यहां पर आपकी सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज होनी थी, या फिर फॉरेन एक्सचेंज की सेटलमेंट होनी थी, या डेरिवेटिव्स की सेटलमेंट होनी थी, तो वो सेटलमेंट कैसे होगी, सेटलमेंट इज अ वे जब वो पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज अ सेटलमेंट ओवर देयर। एंड अब बात करते हैं सिस्टम पार्टिसिपेंट के बारे में। सिस्टम पार्टिसिपेंट जो होता है वो कोई बैंक भी हो सकता है या फिर कोई पर्सन हो सकता है जो पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड इसमें सिस्टम प्रोवाइडर भी शामिल हो सकता है। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ट्रेड रिपोजिटरी ओवर देयर। ट्रेड रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का बेसिक मतलब क्या होता है, रिपोजिटरी इज काइंड ऑफ थिंग, जैसे हमारे ना एनएसडीएल एक्सेट्रा है वो भी रिपोजिटरीज है। तो पर्टिकुलरली क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, डाटा को कलेक्ट करती हैं, उसको एनालाइज करती हैं, प्रोसेस करती हैं, एंड जिसको डाटा की जरूरत पड़ती है वो डाटा को आगे फॉरवर्ड करती हैं। दैट्स समथिंग रिलेटेड टू इट, यानी कि वो पर्सन जो पर्टिकुलरली एंगेज है डाटा को कलेक्ट करने में एंड या कोलेट करने में एंड स्टोर करने में, मेंटेन करने में, प्रोसेस करने में एंड इंफॉर्मेशन को आगे डिसेमिनेट करने में, दैट्स अ रिपोजिटरी ओवर देयर, एंड उसी को ट्रेड रिपोजिटरी भी कहते हैं, राइट। अब यहां पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं। तो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है दैट इज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एज पर द पीएसएस एक्ट। आपके पास 2007 के हिसाब से सेक्शन 3 में यहां पर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर पावर्स दी गई हैं कि वो यहां पर अपने ड्यूटीज को परफॉर्म एंड फंक्शनाइज करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर एक्ट ओवर देयर, एंड दैट इज एक्चुअली रिलेटेड टू, उसके लिए एक वो बोर्ड बना सकते हैं जिसको बीपीएसएस के नाम से हम जानते हैं। एंड बोर्ड में कौन कौन से मेंबर्स होंगे, बोर्ड में यहां पर गवर्नर होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, एंड इसमें डिप्टी गवर्नर होंगे जो इंचार्ज होंगे यहां पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मेंबर होंगे, एंड साथ के साथ एक ऑफिसर यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से होगा जो कि
नॉमिनेट किया जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक के द्वारा। जो सेंट्रल बोर्ड है ना रिजर्व बैंक का, वो एक यहाँ पर पर्सन को, एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड 3 जो पर्सन है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको यहाँ पर नॉमिनेट करेगी। वो तीनों पर्सन मेंबर यहाँ पर काउंट होंगे, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन जो है वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में कवर की गई है। अब ये यहां पर पॉइंट ये कहता है कि कोई भी पर्सन एक्सेप्ट द केस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉट एनी पर्सन अदर देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑथराइज्ड, कि वो यहां पर इंडिया में किसी भी तरह का पेमेंट सिस्टम चला पाए, उसके ऊपर काम काज कर पाए, अनटिल और अनलेस कि वो जो यहां पर अथॉरिटी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर इशू की गई है। तो सिर्फ वही पर्सन यहां पर जिनको ऑथराइज किया गया है एज अ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम जो चला सकते हैं इंडिया में, सिर्फ वही पर्सन यहां पर इंडिया में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चला सकते हैं। एंड लेकिन यहां पर ये चीज कही गई कि एक्सेप्शन किस चीज से रिलेटेड है, कि कंटिन्यूड ऑपरेशन की अगर बात करते हैं, जस्ट लेट्स से देखिए इसकी, ये तो 2008 में ये एक्ट आया, 2008 में ये एक्ट आया, तो 2008 से पहले भी तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम चल रहे होंगे। अब वो सेटलमेंट सिस्टम जब यहाँ पर एक्ट आ गया तो उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा उनको। कितना टाइम मिला उनको? 6 मंथ्स का यहाँ पर टाइम मिल गया कि अब 6 महीने के अंदर अंदर ना आप यहाँ पर परमिशन ले लो, अथॉरिटी ले लो, किससे? ऑथराइजेशन ले लो कि ये सिस्टम आप चला सकते हो, नहीं तो आप सिस्टम नहीं चला पाओगे। ओके, एंड फर्दर इट्स रिलेटेड टू any person acting as the duty appointed agent on any person payment is due। यानी कि अगर कोई पर्सन जो है, any person acting as a duly appointed agent, लाइक यहाँ पर एग्जांपल की तरह समझते हैं कि ए का यहाँ पर एजेंट है स्मॉल ए, एंड बी का यहाँ पर एजेंट है स्मॉल बी ओवर दिया। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली जो पैसे थे, बी ने पैसे देने थे, ए को पैसे देने थे, लेकिन यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से अब ये काम नहीं कर रहा, तो ये पेमेंट जो है ड्यू, ये तो पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ये इस पॉइंट में कहा गया है। फर्दर रिलेटेड टू कंपनी जो कि यहाँ पर पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है आइदर फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी से, वो भी पर्टिकुलरली कोई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम का ऐसे नहीं है कि उनके ऊपर कोई एक्सेप्शन है, वो भी यहाँ पर कामकाज कर सकती हैं। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर किसी भी कंपनी को, कॉर्पोरेशन को यहाँ पर अथॉरिटी दे सकते हैं कि वो यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लियरिंग हाउसेज को या तो ऑपरेट कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं, या फिर नए क्लियरिंग हाउसेज यहाँ पर बैंक्स के लिए बना सकते हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंपनी कॉर्पोरेट है, कम से कम यहाँ पर 51% ऑफ इक्विटी होल्डिंग जो होनी चाहिए ऐसी कंपनी की, कॉर्पोरेशन की, दैट शुड बी होल्डेड बाय द, दैट शुड बी हेल्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास उनकी होल्डिंग हो, तभी यहाँ पर ऐसा हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा, राइट। फर्दर कोई भी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को ऑपरेट करना चाहती है, चलाना चाहती है, उसे यहाँ पर ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अंडर द सेक्शन 5। एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्क्रूटनी करेगा, उसको यहाँ पर गो थ्रू करेगा सेक्शन 6 के अंडर, एंड फर्दर उसको ऑथराइज कर सकता है या फिर रिफ्यूज कर सकता है सेक्शन 7 के अंडर, राइट। तो यहाँ पर सेक्शन 5 जो है उसमें ऑथोरिटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, सेक्शन 6 में स्क्रूटनी होगी, सेक्शन 7 में या तो यहाँ पर अप्रूवल मिल जाएगा या रिफ्यूजल हो जाएगा। फर्दर इट्स रिलेटेड टू पेमेंट सिस्टम कंसीडरेशंस ओवर दिया, यानी कि जब आपके पास कोई सिस्टम आता है तो आप किन स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करने वाले हो, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास किसी अथॉरिटी के लिए यहाँ पर आया कि हम अप्लाई करना चाहते हैं पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम के लिए, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स है वो चीज यहाँ पर मानी जा सकती है कि क्या टेक्निकल स्टैंडर्ड्स का आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में इस्तेमाल करने वाले हो, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहने वाली हैं। अगर मान लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर भी दिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर अलाउ किया कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर यहाँ पर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम चला सकते हो, वो टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड साथ के साथ अगर आपको यहाँ पर किस मैनर में यहाँ पर ट्रांसफर फंड्स किया जाएगा वो चीज यहाँ पर, एंड फर्दर प्रोसीजर क्या होने वाला है नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करने वाले हो, क्या ऑब्लिगेशन होने वाली है यहाँ पर पेमेंट सिस्टम की, उसके रिलेटेड, एंड फाइनेंशियल स्टेटस या फिर एक्सपीरियंस क्या है, मैनेजमेंट का इंटेग्रिटी क्या है एप्लीकेंट की, उसके बारे में, ठीक है। तो ये सभी पेमेंट सिस्टम कंसीडरेशन है, यानी कि जब आप यहाँ पर अथॉरिटी लेने के लिए जाते हो तो उस टाइम पर आपको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है उसके बारे में, राइट। फॉर द ऑथराइजेशन जो इशू है यहाँ पर ऑथराइजेशन इशू की जाएगी, दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट, कि आपको यहां पर बताया जाएगा कि कौन सी डेट से आपको यहां पर परमिशन मिली है, टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग से हैं तो वो बताई जाएंगे, अगर आपको कोई पैसे पे करने हैं उसके रिलेटेड वो आपको बताए जाएंगे, एंड फर्दर अगर यहां पर पर्टिकुलरली एप्लीकेंट को कुछ एक इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है या फिर सिक्योरिटी देने की जरूरत है उसके बारे में बताया जाएगा कि इतनी इन्फॉर्मेशन या इतनी सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। एंड जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लगता है कि एप्लीकेशन सुटेबल नहीं है, उसको रिफ्यूज करना है, वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा कर भी सकता है, उसको रिटर्न में यहां पर एप्लीकेंट को बताना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से उन्होंने उनकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज किया है। एंड कोई भी एप्लीकेशन जो यहां पर रिफ्यूज की गई है वो एप्लीकेंट को बिना सुने यहां पर रिफ्यूज नहीं की जाएगी, यानी कि उनको सुनने की एक बार अपॉर्चुनिटी, यहां पर एप्लीकेंट को सुनने की अपॉर्चुनिटी एक बार उसे जरूर दी जाएगी। फर्दर
कोई भी एप्लीकेशन जो यहां पर ऑथराइजेशन के लिए यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आई है, वो यहां पर कहा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसे कम से कम यहां पर मैक्सिमम मैक्सिमम कह दीजिए 6 महीने में यहां पर उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच एप्लीकेशन ओवर दिया। एंड यहां पर ऑथराइजेशन जो है अगर दे भी दी गई है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी भी टाइम पर ऑथराइजेशन को रिवॉक भी कर सकता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा इवेंट होता है जो कि सेक्शन 8 में यहां पर बताए गए हैं। एंड साथ के साथ जो अग्रीव्ड सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उसको लगता है कि नहीं एक्शन गलत लिया गया है, तो उसके केस में वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं अगेंस्ट द रिवोकेशन ऑफ द ऑथराइजेशन, कि आपकी आपकी ऑथराइजेशन क्यों रिवोक की गई हमारी, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं। 30 दिन के अंदर अंदर उसको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, जब भी यहाँ पर कम्युनिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिवोकेशन की दी गई है उसके बाद। एंड फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह की कंप्लेंट को, इस तरह की जो अपील है उसको 3 महीने के अंदर अंदर आपको सुलझाना पड़ेगा। एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल होगा, राइट। अब हम बात करने वाले रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड सुपरविजन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले सेक्शन 11 के बारे में, यानी कि कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर जो है वो यहां पर सिस्टम में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं कर सकता, ना वो स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकता है, ना ही ऑपरेशन में चेंजेस कर सकता है। इसके लिए उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा एंड 30 दिन का कम से कम नोटिस यहां पर उसको सिस्टम का देना पड़ेगा, तभी वो ऐसे चेंजेस कर सकता है, अदरवाइज सिस्टम में चेंजेस नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है, लेट्स से देखिए कि यहां पर एप्लीकेंट था, उसने यहां पर कहा कि यहां पर हम सिस्टम में चेंजेस करने वाले हैं, उसके रिलेटेड यहां पर उसने रिप्रेजेंटेशन यहां पर किसको दे दी, उसने यहां पर अप्रूवल लेने के लिए रिप्रेजेंटेशन यहां पर किसको 30 दिन का नोटिस दे दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गो थ्रू किया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर दिया, प्रपोजल को यहां पर पास नहीं किया, तो उसके केस में यहां पर जो भी दिक्कत आई, उसको यहां पर कोई भी दिक्कत थी तो उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 2 हफ्तों के बीच में विद इन 2 वीक्स यहां पर कम्युनिकेट करेंगे यहां पर एप्लीकेंट के पास अगेन, एंड एप्लीकेंट अगेन यहां पर 2 हफ्ते के बाद में जो भी चीज है उसको यहां पर फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेने के बाद ही वो चेंजेस को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकता है, उसके बिना वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। एंड उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द सेक्शन 10A ओवर दिया, यानी कि कोई भी बैंक या कोई भी सिस्टम प्रोवाइडर जो है वो यहां पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह की जो चार्जेस है वो इंपोज नहीं करेगा रिलेटेड टू जिस पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं, जिस पर्सन से पेमेंट रिसीव कर रहा है, यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट को यूज करने के लिए नहीं करेगा। यानी कि अलग से कोई चार्जेस नहीं, जो तो सिस्टम की फीस है वो तो है ही है, लेकिन उससे अलग कोई भी चार्जेस वो इंपोज यहां पर नहीं कर सकते हैं। दैट इज द सेक्शन 10A ओवर दिया। फॉर दैट रिलेटेड टू पावर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन और इंस्पेक्शन ओवर दिया, तो सेक्शन 12 जो है वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये यहां पर राइट देता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो किसी भी सिस्टम प्रोवाइडर की रिटर्न्स या डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए रिलेटेड, अगर वो ऑपरेशंस के सिस्टम्स को देखना चाहते हैं तो वो किसी भी इंटरवल के ऊपर ऐसी इंफॉर्मेशन को यहां पर मंगवा सकते हैं। सेक्शन 12 के अंदर ये राइट दिया गया है। एंड सेक्शन 13 भी ऐसा मिलता जुलता राइट यहां पर देता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, जिसमें ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो या फिर यहां पर सिस्टम पार्टिसिपेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करना चाहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 13 ओवर दिया। सेक्शन 14 यहां पर ये कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट किया, उसको अथॉरिटी दी है राइटिंग में कि वो यहां पर कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए किसी भी पेमेंट सिस्टम की प्रेमाइसेस में या बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं, वहां पर जो सिस्टम चल रहा है, कंप्यूटर सिस्टम है या कोई डॉक्यूमेंट है, उनको यहां पर चेक कर सकते हैं, या किसी भी इंप्लॉय से कोई इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जो कि उस पेमेंट सिस्टम का पार्ट है, तो उनको यह चीज करनी पड़ेगी, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर यह भी पावर दी गई है कि वो इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, ऑडिट भी कर सकते हैं पेमेंट सिस्टम की या फिर पार्टिसिपेंट्स की एज पर द सेक्शन 16 ओवर देयर, ठीक है। तो सेक्शन 12 जो है वो यहां पर रिलेटेड है डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न से रिलेटेड, सेक्शन 13 है किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, सेक्शन 14 है यहां पर जो यहां पर ऑफिसर को पावर दी गई कि वो फिजिकली भी यहां पर किसी भी चीज में एंटर कर सकते हैं, दखलंदाजी दे सकते हैं एंड उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सेक्शन 16 जो है इंस्पेक्शन एंड ऑडिट से रिलेटेड है। फॉर इट्स रिलेटेड टू पावर्स टू इशू द डायरेक्शंस ओवर देयर, तो सेक्शन 17 से लेकर 19 तक यहां पर डायरेक्शंस की पावर दी गई है। तो सेक्शन 17 ये कहता है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये लगता है कि जो आपके पास पेमेंट सिस्टम है वो कोई ऐसी चीजें करता है या करने वाला है जिसका इंपैक्ट जो है हमारी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है, इन कंट्री की, या सिस्टमिक रिस्क बन सकता है, तो उसके इसमें, या फिर जो कोई एक्शन है पेमेंट सिस्टम का वो मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर, क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर इंपैक्ट डाल सकता है, तो उसके केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्शंस दे सकता है इन राइटिंग। या तो वो कहेगा कि आपका मैं सिस्टम बंद करने वाला हूं, उसको सीज करने वाले हैं, या वो उस पेमेंट सिस्टम को यहां पर ऐसी चीजों को करने से मना कर सकता है, या पर्टिकुलरली यहां पर इस सिस्टम की वजह से जो दिक्कतें आई हैं उनसे रेमेडी किस तरह से की जा सकती है उसके रिलेटेड हिदायतें यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे सकता है, वो सेक्शन 17 में कवर किया गया। एंड सेक्शन 18 ये कहता है कि इन जनरल जो यहां पर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर वो डायरेक्शन देना चाहता है तो सेक्शन 18 में दे सकता है ऑफ द पीएसएस एक्ट ओवर देयर, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यहां पर ये कहा गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज को यहां पर ली डाउन करने के लिए एंड फर्दर यहां पर पेमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रॉनिक, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो है उनको अफेक्ट करने के लिए जो जनरल गाइडलाइंस है वो यहां पर दे सकता है। सेक्शन 19 जो है वो यहां पर कहता है कि हर कोई पर्सन जिसको यहां पर डायरेक्शन दी गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्हें यहां पर इन डायरेक्शंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा विदाउट एनी डिले ओवर देयर, एंड कंप्लायंस की जो रिपोर्ट होगी वो यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फर्निश करनी पड़ेगी। तो ये यहां पर डायरेक्शन से रिलेटेड था। सेक्शन 17 में पर्टिकुलर केसेस है, सेक्शन 18 में जनरल डायरेक्शंस है, सेक्शन 18 है कि आपको कंप्लाई करना पड़ेगा जो भी डायरेक्शंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत के द्वारा दी गई हैं अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओवर देयर। फर्दर बात आती है सेटलमेंट के बारे में। सेटलमेंट पर्टिकुलर एक प्रोसेस होता है जहां पर जो फंड्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं थ्रू अ सेंट्रल एजेंसी ओवर देयर। तो इसमें नेट सेटलमेंट होती है या फिर ग्रॉस सेटलमेंट होती है, दोनों के बारे में आपको बता चुका हूं एंड इनको सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में भी कवर किया गया है ऑलरेडी, वी हैव गॉन थ्रू द सेम। एंड फर्दर हम बात करने वाले रिलेटेड टू एज पर द सेक्शन 23 जो कि यहां पर डीलिंग करता है सेटलमेंट के साथ एंड नेटिंग के साथ, उसके बारे में डिटेल में यहां पर पढ़ देते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जो पेमेंट ऑब्लिगेशन होती है या सेटलमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पर्टिकुलरली ग्रॉस के हिसाब से या फिर नेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से डिफाइन होते हैं, जो कि अप्रूव की जाएंगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी यहां पर ऑथराइजेशन दी गई थी पेमेंट सिस्टम को उसके पॉइंट से। यानी कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर ऑथराइज किया था किसी पर्टिकुलर पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम को, तो उसको यहां पर पहले बताया गया होगा कि ये नेटिंग कर सकता है, ग्रॉसिंग कर सकता है, उसके बारे में पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम में ऑलरेडी बताया गया होगा क्या प्रोसीजर इस्तेमाल करने वाला है, उस हिसाब से ही प्रोसीजर के हिसाब से नेटिंग एंड सेटलमेंट जो है वो यहां पर की जाएगी। एंड फर्दर जहां पर जो रूल होता है रिलेटेड टू कोई रूल प्रोवाइड करता है कि ऑपरेशन से अगर कोई दिक्कत आती है, कोई लॉसेज होते हैं, तो लॉसेज जो होते हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे अमंग द डिफरेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर, या पेमेंट सिस्टम के बीच में जो लॉसेज होते हैं किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो प्रोसीजर जो है उसका पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली और किसी कानून के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि ये ना हो कि आपने एक सिस्टम बना दिया कि अगर यहां पर ये सिस्टम हुआ, अगर लॉस यहां पर इंकर हुआ तो सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें लॉसेस को इस तरह से डिवाइड किया जाएगा, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का इंपैक्ट जो है ये जो रूल बन गया यहाँ पे, ठीक है, इसका इंपैक्ट किसी और कानून के ऊपर नहीं पड़ेगा। जो दूसरे कानून चल रहे हैं वो ऐसे अपने कानून के हिसाब से चलेंगे, उनका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इनका उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। एंड फर्दर ऐसे प्रोसीजर के अंदर जो भी सेटलमेंट होगी वो फुल एंड फाइनल होगी एंड इरिवोकेबल होगी, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एंड किसी कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के थ्रू या अथॉरिटी के थ्रू यहां पर जो सिस्टम यहां पर बनाया गया है, सिस्टम पार्टिसिपेंट है, अगर वो यहां पर इनसॉल्वेंट हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है या वाउंड अप हो जाता है या फिर पर्टिकुलर उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, तो उसके केस में यहां पर जो लिक्विडेटर होगा उसको अपॉइंट किया जाएगा, असाइनी को अपॉइंट किया जाएगा इन अ प्रोसीडिंग रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी ओवर देयर, and that is the thing. And further it's related to power of Reserve Bank of India to make the regulations. अब regulations का जो पॉइंट है वो यहां पर है कि ये अपनी खुद की regulations बना सकता है, यानी कि इस एक्ट के साथ में कंसिस्टेंट रेगुलेशंस यहां पर बनाई जा सकती हैं, उसके रिलेटेड पावर जो है वो यहां पर सेक्शन 38 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई है। एंड ये जो रेगुलेशंस बनाई जा सकती हैं वो यहां पर जैसे मान लीजिए कि आरबीआई अपनी जो मीटिंग्स कन्वीन करता है एज पर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओवर देयर, उन मीटिंग के टाइमिंग वेन्यू चेंजेस कर सकते हैं, मीटिंग के पॉइंट्स क्या होंगे उनके बारे में बातचीत को चेंज कर सकते हैं, एंड जिस वे में यहां पर ऑथराइजेशन दी जाएगी, किस तरह से ऑथराइजेशन दी जाएगी एंड फर्दर किस तरह से यहां पर वो अपने ऑपरेशंस को सेटअप कर सकते हैं, क्या फीस ली जाएगी, उसको यहां पर ऑल्टर किया जा सकता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ऑथराइजेशन जो है वो यहां पर पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए दी जा सकती है, उसको ऑपरेट किस तरह से किया जाएगा उसके रिलेटेड रेगुलेशंस यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओवर दिया। तो डिफरेंट हमारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमने पढ़े उसके बारे में फटाफट से देख लेते हैं। सेक्शन 2 जो है वो यहां पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बातचीत करता है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले यहां पर पढ़ा था, मैं फटाफट से यहां पर स्क्रॉल करते हुए आपको बता देता हूं। एंड उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, फिर हमने सेक्शन 3 जो है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बारे में बताता है। एंड फर्दर सेक्शन 4 जो है वो यहां पर ऑथराइजेशन के बारे में बताता है, रिलेटेड टू की ऑथराइजेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, किसी और के पास नहीं है, जो एक्सेप्शन केसेस है उसके बारे में यहां पर बताया गया है। एंड फर्दर जो यहां पर सेक्शन 5 है वो किसके साथ डील करता है, वो डील करता है कि आप अप्लाई कर सकते हो लाइसेंसिंग के लिए यहां पर अगर आप पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम चलाना चाहते हो। सेक्शन 6 में स्क्रूटिनी के बारे में कि उसको पर्टिकुलर एप्लीकेशन को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। एंड सेक्शन 7 में यहां पर यहां तो अप्रूवल मिल जाएगा या फिर रिफ्यूजल मिल जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। एंड फर्दर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू जो डिफरेंट यहां पर अथॉरिटी सेक्शंस दिए गए थे उसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि पावर ऑफ इंस्पेक्शन एंड जो थी वो यहां पर 12, 13 एंड 14 में दी गई थी। 12 में पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड रिटर्न से रिलेटेड था, 13 में कोई जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था, 14 में यहां पर किसी ऑफिसर को भेज सकते थे उसके रिलेटेड था, ठीक है। एंड फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑडिट एंड इंस्पेक्शन कर सकती है, वो सेक्शन 16 में कवर था। एंड डायरेक्शंस की बात करें तो यहां पर जो पर्टिकुलरली डायरेक्शंस दी जा सकती हैं अगर पर्टिकुलर
पर्टिकुलरली कुछ स्पेशल केसेस हैं उनके केस में सेक्शन 17 में, जनरल डायरेक्शंस जो हैं वो सेक्शन 18 में दी जा सकती हैं, एंड सेक्शन 19 जो है वो यहाँ पर है कि कंप्लाई करना पड़ेगा अगर डायरेक्शंस यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है, वो चीजें इसके साथ रिलेटेड यहाँ पर थी। एंड सेक्शन 23 जो है वो नेटिंग एंड सेटलमेंट के साथ डील करता है, उसके बारे में आपने पॉइंट्स देख लिए। सेक्शन 38 जो है वो रेगुलेशंस के साथ यहाँ पर डील करता है। सो दैट वुड बी ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो फटाफट से वीडियो को रेट कर देना, आउट ऑफ 10 कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पास कर सकते हो या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड फर्दर आप हमारा कोर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली हैं, ऐसी ही अमेजिंग क्वालिटी के साथ, ताकि आप अपना एग्जाम जो है वो पहली बार में क्लियर कर पाएं। तो आप हमारी एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए अवेलेबल है इन द नेम ऑफ IIBF लर्निंग सेंटर, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर iOS यूजर, डू डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन एंड यूज द ऑर्गेनाइजेशन कोड GEGKT एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फर्दर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारा चैनल ज्वाइन करने के लिए। आपको व्हाट्सएप करना है टू द नंबर 9646900030 के ऊपर, एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द लिंक्स टू यू एंड फ्री PDFs टू यू। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।